చేయడం అనేది జరగదు. లైఫ్ అనేది దానికంటే ఒక మీనింగ్, ఒక పర్పస్ అనేది ల్యాక్ అయినప్పుడు ఆ లైఫ్ అనేది యాక్చువల్ గా అన్బేరబుల్ అండ్ టఫ్ అవుతుంది. So once again, a very good evening to you all, and I am Shiva Gautami, doing my graduation, and I am your host for today. So చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. So it's all about the Gen Y talk అన్నమాట. ఈ రోజు సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ లైక్ U-35 వాళ్ళు ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఈ బిజినెస్ ని, అండ్ హౌ ఆర్ దే గెటింగ్ సక్సెస్ అన్న దాని గురించి ఈ సెషన్. బట్ యాక్చువల్ గా ముందుకు వెళ్ళేటానికంటే ముందు ఐ హావ్ అ క్వశ్చన్. నా క్వశ్చన్ 3 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. బట్ డు నాట్ వరీ, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలుసు కూడా. వెరీ కామన్ థింగ్, అంటే పాత డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరికి, కొత్త వాళ్ళకి కొత్తగానే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ లైఫ్ లో ఏదైనా ఒక కొత్త డెసిషన్ ఒక కొత్త డెసిషన్ కానీ, ఒక కొత్త పని మొదలు పెట్టే ముందు కానీ కొన్ని ఆలోచించాలి మనం. అండ్ దాట్ 3 థింగ్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే వాట్, హౌ అండ్ వై. సో దీస్ ఆర్ ద 3 క్వశ్చన్స్ అనమాట నా క్వశ్చన్ లో. వాట్, హౌ అండ్ వై. ఈ 3 ఇంపార్టెంటే కదా, వింటుంటే అనిపిస్తుంది 3 ఇంపార్టెంటే. ఏం చేయాలా, ఎలా చేయాలా, ఎందుకు చేయాలా. బట్ ఈ 3 కల్లా ఇంకొకటి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చేది ఉంది. ఆన్సర్ బయటికి చెప్పని అవసరం లేదు, ఒక ఆన్సర్ ఫిక్స్ అయ్యి పెట్టుకోండి. బట్ యా, సో ఆన్సర్ రివీల్ చేసే కంటే ముందు నేను ఈ బిజినెస్ లోకి రావటం అనేది నేను తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం. సో మరి నేను ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే, నా ఫ్రెండ్స్ కి నేను యాక్చువల్ గా చూసినప్పుడు, డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమందిని అడిగాను నేను, నా ఫ్రెండ్స్ ని, లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ అని చెప్పేసి. అండ్ దేవర్ లైక్ యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే సివిల్స్ రాస్తాము, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అని అన్నారు. మరి వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ, డిగ్రీ తర్వాత యూ విల్ గో ఫర్ కోచింగ్ అని అడిగాను. అంటే దే సెడ్ నో, యాక్చువల్లీ డిగ్రీ తర్వాత ఎంఏ చేస్తామని అన్నారు. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్, మాస్టర్స్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లో మాస్టర్స్ అవ్వటం అంటే ఇట్స్ లైక్ రియలీ గ్రేట్ థింగ్ అని అనుకున్నాను, అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకని. బట్ నేను యాక్చువల్ గా వింటా ఉంటే ఏం తెలిసిందంటే, మాస్టర్స్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే సివిల్స్ ఒకవేళ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చాక ఒకవేళ క్వాలిఫై అవ్వకపోతే ఈ మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకుని జాబ్స్ కి వెళ్ళడానికి అని చెప్పి. ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ మా పేరెంట్స్ ఆల్రెడీ బిజినెస్ లో ఉండటం వల్ల మేబీ అసోసియేషన్ పవర్ ఏమో, నాకు ఇప్పుడు జాబ్స్ అనే థాట్ కూడా రాదు. ఆ జాబ్ అంటే నాకు ఐ స్టే 100 కిలోమీటర్స్ ఫార్ అనమాట. ఆ జాబ్ అనే థాట్ అస్సలు లేదు. సో అది అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, మరి డిగ్రీ తర్వాత నా ప్లాన్ ఏంటి. ఇప్పుడు ఒకప్పట్లో 21st సెంచరీ కంటే ముందు చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆలోచిద్దాం అన్నట్టు ఉంటుండే. బట్ ఇప్పుడు బీయింగ్ ఇన్ 21st సెంచరీ, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే ప్లాన్ ఏ తో పాటు ప్లాన్ బి ఉండాలా. అండ్ ప్లాన్ బి కూడా యూ విల్ హ్యావ్ టు బిగిన్ వెరీ యంగ్. అంటే ఎంత ఏజ్ లో మొదలు పెడితే అంత మంచిది అండ్ అంత సక్సెస్ఫుల్ ఉంటారు మీరు, రైట్. సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అసలు డిగ్రీ తర్వాత నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానని చెప్పేసి. ఎంఏ అయితే ఇంట్రెస్ట్ తో చేయాలా, కానీ ఏదో జాబ్ కి సేఫ్ సైడ్ ఉంటుందని అని చెప్పి అలా కాదు. సో దాట్స్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, బయట చేసుకోవడానికి పార్ట్ టైమ్ గా ఉన్నాయి బయట అవకాశాలు కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మా ఫ్రెండ్స్ కొందరు మెహందీ వేస్తున్నారు, కొందరు ట్యూషన్స్ చెప్పడానికి వెళ్తున్నారు. బట్ ఓకే, అవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ ఎందుకో అనిపించింది. బట్ నాకు ఈ బిజినెస్ లో నేను వచ్చాను ఎందుకంటే, నేను రేపు నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత నా కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు నా కెరీర్ కంటూ ఒక ప్లాన్ బి ఉండాలి. ఆ ప్లాన్ బి వచ్చేసి ఈ బిజినెస్ అని అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ప్లాన్ బి ఉంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కొంచెం, రైట్. ఏ ప్యాషన్, మన ప్యాషన్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు. ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లేదనుకోండి, మళ్ళీ జాబ్ లోకి వెళ్తాం, మళ్ళీ రొటీన్ లైఫ్. సో ఆ సపోర్ట్ కోసం, దాట్ ఈస్ వై ఐ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్. నాకు ఆ ప్లాన్ బి, అండ్ ఆ ప్లాన్ బి నేను నా కెరీర్ ఆప్షన్ కి నా ప్లాన్ బి ఉండాలని చెప్పేసి నౌ ఐ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్ అనమాట. దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్. అండ్ ఇంకా ఈ బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అనటానికి దేర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ అనమాట. ఒకటి 18 years వచ్చినప్పుడే రైట్ టు ఓట్ వస్తుంది, ఓట్ వేయడానికి. అంటే ఒక లీడర్ ని ఎన్నుకునే హక్కు ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎంత మెచ్యూరిటీ వచ్చి ఉండాలి 18 years కి అంటే. బట్ అర్నింగ్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది చాలా మటుకు. అందుకే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో పార్ట్ టైమ్ గా జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు చదువుకుంటూ స్టూడెంట్స్ కూడా. అది ఇంకా ఇండియాలో డెవలప్ అవ్వట్లేదు. బట్ ఈ మధ్యలో ఇట్స్ టేకింగ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. సో నేను
ఈ బిజినెస్ కి వచ్చాను. ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్టయితే నేను ఎందుకు వచ్చాను అన్న దాని గురించి వివరించాను, రైట్? సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఈ బిజినెస్ ఏంటి, ఈ బిజినెస్ ఎలా చేయాలి అన్న దాని గురించి మాట్లాడలేదు. ఈ బిజినెస్ లోకి ఎందుకు వచ్చాను, వచ్చిన తర్వాత దట్ బికమ్ సెకండరీ. ఏం చేయాలా, ఎందుకు చేయాలా, ఎలా చేయాలా, రైట్? ఎందుకు చేయాలి అన్నది వాజ్ మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, రైట్? సో అందుకు మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా. నేను అడిగిన ఒక క్వశ్చన్ లో 3 క్వశ్చన్లు ఉన్న వాటికి. సో వై ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఏదన్నా ఒక డెసిషన్ కానీ ఒక పని తీసుకునే ఏదన్నా ఒక పని గురించి డిసైడ్ అయ్యేటప్పుడు. సో ఈ రోజు మనం ఇలా కనెక్ట్ అవ్వటానికి ద మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి మన ఇలా యంగ్ జనరేషన్ అండ్ ఈ యంగ్ జనరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు, లైక్ యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు U-35 సక్సెస్ఫుల్ టాక్ ఈ రోజు వినటానికి మనం వస్తున్నాం. లైక్ ద యంగ్ లీడర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ యంగ్ ఏజ్ లో ఈ బిజినెస్ చేయటం మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళ బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ జర్నీ గురించి, వాళ్ళ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ గురించి వినడానికి we got connected and let's go into that. Hi everyone, this is Sumit Bahadur. Welcome to yet another digital conclave. और दोस्तों आज हम लोग एक बहुत important topic पे बात करने वाले. But first, let me introduce myself. My wife Tanya and I, we are both computer engineers. I am an IIT Delhi alumnus. और I was part of a tech startup team which had an IPO in the US, a very successful IPO. We were listed on NASDAQ. We were the talk of the town. Our company was written about in the Forbes magazine. और उसके साथ साथ both of us, Tanya and I, we were very adventurous. We worked in several high-profile positions in Fortune 50 companies. But at the same time, I'm proud to say that I'm also an executive diamond in the Amway business. So दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे about our business, about the model that we profess and we talk about, which is a direct selling model. क्या विशेषताएं हैं इसमें, क्यों ये इस समय का वक्त का तकाजा है, why this is something, an idea whose time has come. And to be very honest, Amway India right now is on a roll. Why? Because we are a 2,000 crore rupee company, which is going to be a $1 billion company very soon. That is 7,500 crore rupees in the next 4 to 5 years. But at the same time, I feel that the true potential of our company, our business in India, is actually 20,000 crore rupees. और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? Why do I say that? Because today social selling, peer-to-peer selling is on everybody's सबके मुंह पे है ये, on everybody's tongue. Professionals are talking about the fact that India social selling is actually exploding. मैं कुछ दिन पहले statistics पढ़ा था. I was just looking at the statistics a few days back and I saw that after pandemic, पिछले 2 साल के अंदर, almost 60% of the consumers who purchased the product have been contacted by a social seller, और उनमें से 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा और खरीदने के बाद उसको repeatedly buying कर रहे हैं, उसको बार-बार खरीद रहे हैं. So there is a lot of repeat buying happening through social selling where somebody has recommended a product, somebody is buying it. But why is that happening? Because of relationship, because of trust. And you know what? Our business is all about relationship and trust. And our business has a lot of fun element. It's about building a lifestyle, which includes traveling all around the world. It includes personal branding. और इस चीज में हमारे जो youth है, they are very, very good. Why? Because India is a young country. Sharing, and recommending things is in the DNA of our youth today. So that is why I'm so bullish about this market, and I feel that we are poised for some massive growth.
लेकिन आज हम लोग बात करेंगे all about the young entrepreneurs who are just tearing this business apart. I'm so proud. Today we have selected a very special group of people for you. And we have personally handpicked them from across our team, all across India. And it's my pleasure to go ahead and introduce all of them one by one to you. And I'm so proud of each and every one of them. So let me take this opportunity to introduce you to our esteemed panel today. First, I want to introduce to you a very, very special young man, Avinash Pinto. His background is in finance and marketing. He had been working for banks in the area of risk analysis. He was into mortgage banking. He even had a chance to go to the United States and actually work there as a professional, but he actually declined that opportunity. Why? Because he believed कि इंडिया में उसका फ्यूचर है और वो इंडिया में इस वक्त ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. He's an Amway entrepreneur और साथ साथ he takes up projects on the side depending on his time, his interest, and he's a free man today. And he's a second generation entrepreneur. And I remember when he was young, he was so shy कि कभी-कभी तो वो रूम से बाहर ही नहीं आते थे. And today he has a big leading team, and I'm so proud that he's on the panel today. And then we have another second generation young lady. Her name is Chakraborty. She has a master's in psychology. She's a professional psychological counselor. But उनकी story है, it's a story of grit. It's a story of perseverance because she lost her father at a very young age. And while taking control and charge of her business and taking care of her mother, she was able to rebuild this business to new heights. And today, she's working in different areas in her life. And again, full of choices, full of guts. And she's standing on her own and she's building the business very big. And I'm so proud that she's here today. I have another young man, Harvinder Singh. My goodness, what a guy. छोटी सी जगह से आए पंजाब में जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ करती थी. प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, फास्ट बॉलर थे क्रिकेट में स्टेट लेवल पे. बट एट द सेम टाइम ही सॉ दैट ये बिजनेस में he has some unparalleled opportunities not only to travel the world, all first class, but at the same time make a difference in his society, in his family. And you're going to be hearing from him. And then we have a fantastic young lady. Her name is Yashvi. Yashvi, single girl from a middle class background, shy, introvert. But at the same time, she blossomed like a swan, and is business mein aane ke baad, all her leadership, talent, they all came out to the front. Not only she transformed herself into a world-class leader, built a big community, but at the same time, she's trying and testing her hand and proving her mettle in the beauty industry, all on the sides of this business. We are so proud to have her on this panel. And then we have this very special young man, Sangeet Kamal. He was only 3 or 4 years old when his father started this business. He's also second generation. And at the age of 18, he started this business on his own. He became an Amway entrepreneur. He's pursuing his degree in fashion technology, going to school, working this business in ways only a millennial can. और एक millennial की तरह वो इस business को ऐसे build कर रहे हैं, on the go all the time, traveling, that he's having fun with it and he's earning great amounts of money, and he has lots of dreams that he's fulfilling and making a difference in the society. Then we have Dr. Mamuna. She has a powerful story, She is a dentist, but at the same time, she believes in women empowerment. She believes in carving out her own identity. अपने टर्म्स पे जिंदगी को जीना है, अपने तरीके से जीना है, लोगों के अंदर एक बदलाव लेके आना है, बट द सेम टाइम हमारी जो कोर वैल्यूज है उन्हें नहीं छोड़ना है. And she is building a great community in an international fashion, and she'll talk about herself. Then we have a great guy, Keshav Dubey. केशव की बैकग्राउंड ऐसी है कि उनके फादर जो है इस बिजनेस में ऑलरेडी एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं. उन्होंने अपने फादर के साथ रह के उनके पाँव के पास बैठ के बिजनेस सीखा है, बट एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, अपना बहुत बड़ा कम्युनिटी बिल्डअप किया है. ही हैज सो मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन हिज कम्युनिटी, बट एट द सेम टाइम
उन्होंने अपने फादर से एक गुरु शिष्य की रिलेशनशिप डेवलप करी, ना कि एक फादर एक बाप और बेटे की। और साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस में एक एक पहलू को जिया है और किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड किया है, वो अपने बारे में बताएंगे आपको। देन वी हैव अ ग्रेट गैल विश्रुति. Vishruti had traveled to Europe and she had worked for companies into digital marketing. She's a qualified business administrator. She has a degree in business administration. She had opportunities to go abroad and settle there, but she chose to stay back in India. And she is now not I-centered, but she's we-centered. वो लोगों को help करना चाहती है. She wants to build a community. She wants to live life on her own terms. But at the same time, she also wants to hold on to her core Indian values. You're going to hear from her. And then we have a guy called Neil. Neil to hai, he's a multifaceted personality. You know, he's a professional cricketer. He's also a professional choreographer. In passions ke saath saath, he has a degree in finance. He's pursuing a job in his family business, but at the same time, he's putting all his heart and all his time into building his Amway business. And he's building a huge community, and he's a leader on his own. और आज उनसे हम लोग सुनेंगे. And then we have a great guy, my personal favorite. He is the talk of the nation. He's none other than Founders Emerald Guransman. Guransman के बारे में मैं क्या ही बताऊं. Founders Emerald at a very young age. मैं तो उसको जानता हूं when he was just 20s में थे, अपने early 20s में 21, 20. But now today he's a Founders Emerald. And he is known across India, across the world, and he's building a huge business. उनकी स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं. You can go ahead and visit our website and read about him, and everybody knows him. So he is going to be the MC of today's event. तो दोस्तों, I'm so excited that I have my notepad and pen ready, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो हैं अगले 1 घंटे के लिए give me your full attention, okay, take notes, and now I want to bring all our panelists in front of you guys. Here they are. Hi everyone, good evening, namaskar, sat shri akal, all the panelists, you can say hi to everyone. Hello. all are rocking, and good evening everyone. Yeah, so good to be here and good to be with every one of you. So मेरा नाम गुरंस है, as introduced by Sumit sir. So I have been building this opportunity, और इस opportunity पे मुझे आज काफी साल हो गए हैं, और पिछले 7 सालों से we have been traveling around the globe. तो इसी opportunity को बहुत सारे लोगों तक हम ले जा चुके हैं, और उनके साथ आज हम बहुत अच्छे से नेशनली और ग्लोबली हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं. सो वाई आज का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि आज देयर आर मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल जिनके पास होप भी नहीं है टू लिव बेटर लाइफ. और आज का जो हम किस कारण के साथ हम यहाँ पर सब लोग हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड एमबे. सो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्या है ये अपॉर्चुनिटी? बहुत सारे आज के हमारी जो ऑडियंस है, बहुत सारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके हैं, इसको लीड कर रहे हैं. तो उनके लिए ये प्रोग्राम जो होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि कैसे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और कैसे जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर लीडिंग विद पैशन, दे आर लीडिंग विद फुल ऑफ एनर्जी, और आपको क्या आइडियाज मिल सकते हैं. देयर आर सम न्यू एंड यंग इंस्पायरिंग ऑडियंस जो शायद पहली बार ऐसे इवेंट में आए होंगे, लाइव कॉन्सर्ट में आए होंगे हमारे. तो मे बी दे वुड बी हैविंग एन आइडिया, मे बी दे वोंट बी, बट मैं उनको बताना चाहता हूँ जो दो दोस्तों ने ये डायरेक्ट सेलिंग को फाउंड किया था आज से ऑलमोस्ट 62 years बैक, 1959. they had a purpose, और उनका जो पर्पस था उनको पता भी नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं, लेकिन but they created a plan which is empowered by the God to around the clock to improve ourselves. तो हमारे ये नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है उसके कारण आज हम तो आज भी we are in a process of improving ourselves. So we have all the young panelists with me. तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो मेरा तो काम है कि उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग से आप समझ पाएंगे कि why we all are here. So first of all, to all the boys and girls, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आज मेरी
मैं कहता हूं कि आज भी जब मैं लास्ट वीक आई वाज शेयरिंग अबाउट दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ मोस्ट डिस्कस्ड अपॉर्चुनिटी, यू नो, पूरे दुनिया में आज एमवे और डायरेक्ट सेलिंग की बातें सबसे ज्यादा हो रही हैं, इवन इट्स द मोस्ट गूगल सर्च्ड, यू नो, और लीस्ट अंडरस्टूड है, बहुत कम लोगों को नॉलेज है। मैं जब लोगों से बात करता हूं एंड दे गिव मी सम पॉइंट्स के sir, this is this, but when I give them a pen and a copy, they don't know what is the plan. ये क्या है, क्या practically ये model है क्या, you know, how we earn money, how we lead people. So I think it is very important to understand. But आज मैं चाहता हूं कि आपके understanding से क्या आप कुछ ऐसे पॉइंट्स आज बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, बिकॉज वी गोना हैव अ सुपर डिस्कशन टुडे. सो अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग, इट्स अ वास्ट टॉपिक, बट मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग, वी हैव सम हैंड रेज जहां पे कुछ लोग बात करना चाहते हैं. सो आई वांट टू स्टार्ट विद अविनाश. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन डायरेक्ट सेलिंग? Thank you so much, Gurans, for giving me the opportunity to explain about direct selling, especially because, like you said, it's very misunderstood, right? So I would request to share a few slides so that I can better explain to all of you what it actually means. Okay, so firstly, I want to mention that we are very proud, all of us, that Amway is the #1 direct selling company in the world, right? It is such a great feeling because, see, being #1 at something, it's very, very rare and very, very hard to do. And this company has accomplished that great feat. Okay, so the best direct selling feature that I'd like to highlight is something called free enterprise. Okay, free enterprise means equal opportunity for all. Everybody, whoever is part of our organization, will be given an equal chance to become successful in their life. I mean, how beautiful is that? Irrespective of whatever their educational qualification is, whatever amount of work experience is, or even different careers, like so many panelists are here today from different backgrounds. Whatever the chance that you have, you will be given that same chance, just like everyone else you see here, to become successful in life. And the other point that I wanted to mention is that it is a no risk opportunity. See, many companies or many businesses always involve a high amount of risk, right? So make the smart choice. Why not be with a company that is tried and true for over 62 years? And there is no risk involved. All you need to do is you need to convert your expenses into investment by just switching your brand from an X brand in the market to the Amway brand. I mean, what an amazing concept. Okay, so to give you more details on this concept, I'd like to show you the difference between the traditional selling model, okay, and the direct selling model. Now, the traditional selling model is what we are all part of. We are spending money, we are going to the shop, and we are buying something at MRP, right? So you can see you at 100% MRP. But what we are doing is we are not taking it directly from the manufacturer. We go to the shop, retail store, bazaar, or even shop online, right? But they have gotten it from someone called middlemen, okay, who are like wholesalers, stockists, brokers, etc. But they got it from the factory, right? And you can see the manufacturer will take their profit at 40%. But almost 60% of the money, what we are spending, hard-earned money, is going to the middlemen. Okay, so what Amway's direct selling model is so revolutionary. It brings us into the driver's seat. We become the middleman. Okay, such a beautiful feeling. So you can see here, Amway becomes the manufacturer. We switch from an X brand manufacturer to us, and then we become the profit sharing partner with the company. And then we start having customers who also will be provided by the company 100% satisfaction guarantee. See, even companies, big companies around the world, world-class companies, will not give 100% satisfaction guarantee. But this is one of the best companies in the world by giving this guarantee to all of us. So this was my part on the best direct selling features in the organization. So thank you, and back to Mr. Gurans. Avinash, thank you for sharing this. You know, आज मैं देखता हूँ कि जो आपने मॉडल शेयर किया है, and people, you know, somewhere they struggle to start their own business. You are into finance, you are already doing a great job, and you've been to America, US as well. Did you ever thought of starting any traditional selling business before this? Absolutely not, Gurans, because like you said, it's such a misunderstood opportunity
that even I did not understand it in the beginning. And what happened is I took it at face value, like whatever I heard from my neighbors, friends, family members, and I decided, oh, that is it. So I don't want to be a part of it. But as I went deeper into it, as I got opportunity to meet with the leaders, then I understood the real meaning of this company and its values. And then I really wanted to be part of it. And the best thing I can tell you is I will never change my company from the Amway company. Awesome. So the message is very clear, guys. तो अगर डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये मॉडल ना होता, शायद अविनाश जैसे ऐसे जो ऑलरेडी दे आर गुड इनटू देयर जॉब, वो कभी सोचते ही ना कि अपना खुद का बिजनेस भी होना चाहिए. मे बी ऐसे लोग बहुत सारे और भी हैं जो किसी जॉब में हैं, चाहे वो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, टाइम फ्रीडम चाहिए. तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत वास्ट टॉपिक है. तो नेक्स्ट आई थिंक संगीत वांट्स टू ऐड ऑन टू इट. संगीत, सो ओवर टू यू. Yeah, thank you for the opportunity. So such excellent points were put out by Avinash, the previous panelist, and I'd like to build upon that. Me as a youngster in his 20s, just 20 years old. So you can just imagine as a youngster how my life will be. So it is entirely unpredictable. As a college student, the timetable, the project they give, the assignments they give. So it's entirely unpredictable, and I have to travel to this place due to Corona. I should go back to college. So the main point is flexibility, which comes with free enterprise. The flexibility of time, the flexibility of the place, and flexibility of the people who I'm able to work with. So it's on the go. When I go out, when I catch an Uber, when I go out to eat with my friends, so I meet new people, I can do prospecting. It's all according to my wish of how I design the business. So if I have exams, I can just take the time of when I'm free, or I can make my time of this is when I want to do this business. This is when I can't do this business. Okay, so I can arrange this. And as youngsters, we are picky with people because mostly we are introverted, little bit of extrovertedness. So we are picky with people. So we can also choose the people who we want to work with. So this flexibility, and also now I'm in my PG. If I'm in my college, I can attend this program. Wherever I am, even if I'm traveling, just a device and proper network connection, and that flexibility is there. So this flexibility, I believe that there's no other opportunity that provides such an amazing key feature of flexibility, where you can build a multi-million, a 6-figures business or even more in several countries with just a phone. Yeah. Awesome. So I think this is great. Work-life balance की बात हो रही है. You are a student. Avinash is coming from a job background. You are अभी आप पीजी में हो और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, और ऑन द गो इस इवेंट को भी आप अटेंड कर रहे हैं. देयर आर मेनी लाइक यू. आज की जो ऑडियंस हमारी पता नहीं कहां से हमारे साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज ग्रेट. पोर्टेबल बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिजनेस ऑन द गो. बहुत कम बिजनेस हैं जो आपके स्मार्टफोन से रन हो रहे हैं आज. एंड आई थिंक कमिंग ईयर्स, अगर आपका बिजनेस आज आपके स्मार्टफोन से नहीं रन हो रहा, I think in coming years you will be finding very hard to go with the world. So I think this is great about the direct selling. So thank you so much, Sangeet. And we have another wants to add up. I think Dipti is there. So आप अगर कुछ बात करना चाहेंगे from the girls' point of view. नमस्कार भारत, बहुत बहुत आभार गुरहंस जी, आपने मुझे मंच दिया. I would definitely like to add on this thing. See, for me, मेरे लिए सबसे important there are certain features, कुछ ऐसे फीचर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के जो मेरे मन को ना पर्सनली बहुत ज्यादा छूते हैं. सबसे पहला चीज है, हम ना अपने मूल स्व में रहते हैं. मतलब हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में रह करके ये अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत टच करता है. क्योंकि जब हम ओरिजिनल होते हैं ना, तो हम अपना सबसे बेस्ट देते हैं किसी भी चीज में. और हमारे अंदर जब कोई मिलावट ही नहीं होती है, जब हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, हम जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जहां से भी आते हैं, हमारे अंदर अगर एक ड्रीम है, हमारे अंदर एक कुछ कर गुजरने की चाहत है ना, तो हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत प्यार से बिल्ड कर सकते हैं. और तीसरी चीज जो सबसे प्यारी लगती है कि हम सबका विकास सोचते हैं, इसमें हम सबका अच्छा सोचते हैं, तो हम बहुत सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेकर के चलते हैं. जब हम लोगों का आशीर्वाद लेकर के चलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम एक अच्छे चीज को आगे बढ़ा करते हैं. हम एक बड़ी संगठन का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस बहुत बढ़ता है. और जब हम साथ में बढ़ने की कोशिश करते हैं, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी भी कहते हैं, तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं. और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? सबसे मजेदार बात ये है डायरेक्ट सेलिंग फीचर की, कि हम ना ऐसे सबसे प्रथम वी बिल्ड इट इन आवर पार्ट टाइम.
हम कुछ एक प्रोफेशन में होते हैं और साथ में कोई स्टूडेंट हो वैसे बिल्ड कर रहा है, कोई होम मेकर हो साथ में बिल्ड कर रहा है, कोई किसी भी जगह से उसको बिल्ड कर सकता है साथ में बिना अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब करके. सो व्हेन वी डू समथिंग ऑफ दैट काइंड, इट ऑटोमेटिकली एनहांसेस योर प्रोफेशन. मेरे संग तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है ना इस बिजनेस को करते करते कि मेरा जो करियर है दैट इज टचिंग जेनिथ. And automatically I can, vouch कि millions and millions of people are experiencing this thing. This is what I want to say about direct selling to you. Thank you. आपने ना बहुत अच्छे से दीप्ति जी बहुत अच्छे से पॉइंट्स फीचर्स बताए हैं डायरेक्ट सेलिंग के, बट आपके एक बात थी, नो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, है ना, चाहे वो हमारे कैरेक्टर की हो चाहे कंपनी की हो. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बिकॉज वन ऑफ माय अंकल, मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप तो हमें बता रहे हो प्रोडक्ट्स के बारे में चाहे अपॉर्चुनिटी के बारे में, लेकिन और तो कोई ऐसा है नहीं, आज तक हमने किसी ने हमें ये नहीं बोला कि आप ये टूथपेस्ट को यूज करो, इस प्रोडक्ट को यूज करो. Why are we there? या मार्केट में उनको पहले कोई नहीं मिला? कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी मेरे संग तो बहुत बहुत बार हुआ है. मैं तो बोलती थी अंकल जी जो मेरे दिल में है ना मैं आपको बता रही हूँ, या आंटी जी जो मेरे दिल में मैं इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, और मैं आपका अच्छा चाहती हूँ ना इसलिए. बाकी चॉइस इज योर्स. मार्केट पड़ा हुआ है, आप कभी भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोई जना अगर दिल से बात कर रहा है ना तो आंख में दिखता है. और जब मेरे आंख में सच्चाई दिखती है तो ऑटोमेटिकली लोग उसको लेते हैं. दैट इज व्हाट आई से. बिल्कुल सही बात. एंड मैं ना अपने एक्सपीरियंस से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. अविनाश जस्ट सेड इट कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल. एक मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक का जो लिंक है ना, जो ट्रेडिशनल मार्केट में है, देयर आर मेनी पीपल. जहां जहां से वो प्रोडक्ट निकलता है मार्केट में, वहां पर उसकी सेटिस्फेक्शन गारंटी खत्म हो जाती है. एमवे, अगर मैं किसी को प्रमोट भी कर रहा हूं एमवे का कोई प्रोडक्ट या डायरेक्ट सेलिंग का, ही इज नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम मी. वो मेरे से नहीं बाय कर रहा, ही इज बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम अ फैक्ट्री, फ्रॉम अ स्टेट टू मैन्युफैक्चरर. और उसमें हमारा एक जो मॉडल है वो इतना ब्यूटीफुल आता है, बिकॉज ऐसी सेटिस्फेक्शन गारंटी, ऐसे जो साइंस बैक करती है हमारे प्रोडक्ट्स को, वो पूरी इंडस्ट्री में इंडिया में कहीं भी नहीं है. सो थैंक यू सो मच दीप्ति एंड थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स. सो अगर मैं इसको समराइज करूं अविनाश के पॉइंट को, द डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, उसकी ब्यूटी, द एमवे हैज बीन हियर फ्रॉम 1959, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. उसके बाद जो आज अभी द संगीत व्हाट इज सेड कि पोर्टेबल बिजनेस, फ्लेक्सिबल, जैसे वो एक फोन, एक स्मार्टफोन के थ्रू लोगों को डिजिटलाइजेशन में आगे लेके जा रहा है. बट आई थिंक देयर इज अ यंग चैम्प विद अस, हरविंदर, जो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के कुछ में कुछ ऐड करना चाहते हैं. सो हरविंदर, ओवर टू यू. हेलो गुरहंस, आई एम फ्रॉम पंजाब. तो मैं बिजनेस के बारे में, इस मॉडल के बारे में मुझे बताया गया, तो मुझे लगता था, हमें भी पता था कि बिजनेसमैन रिच होते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जो हमारे पास नहीं थी. तो इसलिए जैसे अविनाश ने बताया कि दिस इज फ्री एंटरप्राइज, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे ये लगता था कि ये अपॉर्चुनिटी जो है मेट्रो सिटीज में चलती है. तो फिर मैंने इसको स्टडी किया, देखा, तो हमने भी इसको बिल्ड करना शुरू किया. इस मॉडल ने डायरेक्ट सेलिंग के जो फीचर है हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला. तो हम अपने मेंटर से कनेक्ट किए. ऐसी बातें हमें डायरेक्ट सेलिंग में आकर पता चली, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेंटेंस का हमें पता नहीं था, विजन का पता नहीं था, तो उनको भी देखते थे. वो पिछले 20 साल से फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे, आपको भी वॉच करते थे, आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, सुमित जी को वॉच करते थे, तो हमें लगता था हम क्यों नहीं कर सकते. तो लास्ट जब मैं स्टूडेंट था तो इन चीजों को देखा और स्टडी करते करते इन चीजों को बिल्ड किया, और लास्ट 1.5-2 साल से मैं इन चीजों को एंजॉय भी कर रहा हूँ. तो अभी मैं तुर्की जाकर आया हूँ, मेरे मदर मेरे साथ गए थे, तो उस मदर मेरे साथ गए, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया. रैगनम कार्या 5 स्टार प्रॉपर्टी, और जब वो रूम में एंटर हुए तो वो अंदर ही जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया रूम फर्स्ट टाइम देखा, ठीक है, पास में समुद्र था, बीच था, तो वो 15-20 मिनट बीच को देखते रहे. तो जो हमारे रिलेटिव्स कह रहे थे कि ये काम चलता नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी चलती नहीं है, तो उनको उन्होंने वीडियो कॉल कर बताया कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी चलती है, तो कैसे हमारी लाइफ इसमें चेंज हो रही है. सो अरविंदर, दिस इज ग्रेट. यू नो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब हम बात करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं है. कभी भी मैंने तो किसी और अपॉर्चुनिटी में ऐसा सुना नहीं है कि कोई यंग बंदा अपने मदर को घुमाने लेके गया हुआ है, चाहे आप अभी
तुर्की जाके आए अंतालिया में, इट वाज अ ग्रेट ट्रिप दिसंबर में। अभी हम अबू धाबी जाके आए थे लास्ट इसी मंथ में, मार्च में। सो कभी मैंने देखा नहीं, मैंने अपने मदर के साथ 7 साल ट्रेवल किया है एंड 14 कंट्रीज मैंने और मेरे मदर ने ट्रेवल की है। वी कम फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, एक हम्बल बैकग्राउंड, हार्ड वर्किंग, है ना, गवर्नमेंट जॉब पे थे। सो डायरेक्ट सेलिंग ये एमवे अपॉर्चुनिटी एक फुल पैकेज है। एंड विद योर एग्जांपल मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि अभी देखो कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को फ्री भी करना चाहते हैं और प्राउड भी करना चाहते हैं। सो अ ग्रेट पॉइंट हरविंदर, थैंक यू सो मच। जाते जाते कभी आपको किसी ने सवाल तो नहीं पूछा कि आप पंजाब से हो? तो इस सवाल में पता चलता था ना, सिंबल है हमारा। तो आपकी और हमारी पहचान है पंजाब की, सो है ना, ऑब्वियस। सो थैंक यू सो मच हरविंदर फॉर एडिंग अप दिस पॉइंट। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। और डायरेक्ट सेलिंग की बातें, अगर मुझे लग रहा है कि अगर ये एमवे और डायरेक्ट सेलिंग के कॉम्बिनेशन में आपको समझ आ रहा है, सो ये एक बहुत वास्ट प्रोडक्ट है। मैं चाहूंगा कि आप वो सभी टूल्स एंड सभी अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ रखिए। यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड ऑन द गो यू विल हैव मिलियंस ऑफ पीपल। आपके सामने भंडार होगा लोगों का जब आप ये मॉडल को सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। और जब वो आपके अंदर सामने अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, मुझे आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन में गया हूं जब मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। नो वन ऑन द अर्थ सेड मी कि ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में ये चीज आपकी अच्छी नहीं है। इट इज सो गुड 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 गुड। सो आई थिंक वी आर, बहुत अच्छे से ये जा रहा है। और अभी जो बात हो रही थी ना संगीत की, द डिजिटल, द स्मार्टफोन, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटलाइजेशन क्या है ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक ये टॉपिक सभी क्या सबसे क्लोज है। और घर बैठे सभी आज जो इवेंट को देख रहे हैं, दे वांट टू नो कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज कर रहे हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स को यूज करके। सो आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि आप कैसे कर रहे हो। सो दिस इज अ ग्रेट टॉपिक। सो समबडी इज देयर टू टॉक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म? क्या आप बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं अपने से? सो देयर आर मैनी मैनी लीडर्स। सो विशुति, लेट्स स्टार्ट विद यू। आप क्या बताना चाहेंगे डिजिटल पे, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो? Hello, thank you, Gurans, for the question, and good evening, everyone. So I think first most work from home opportunity हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, and Amway की बात करूँ तो Amway work from home opportunity is providing to everyone since 1959. So ये एक point है जो I think हम सब skip कर देते हैं कहीं ना कहीं. And we as a community have understood the importance of digital platform. हम इस पर बहुत religiously work भी कर रहे हैं and अपनी improvement के लिए, दूसरों की improvement के लिए, and we have so many powerful tools जिससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मेरी टीम ने बहुत कुछ सीखा है। And first platform मैं यही बोलूँगी vision100.com, जिसपे आज हम सब connected हैं। I think we have connected with so many people with just one click away. And इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम वॉल ऑफ फेम अचीवमेंट्स जिन्होंने किया है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस वेबसाइट के थ्रू। एंड सेकंड एंड माय मोस्ट फेवरेट टूल इज स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट। एंड आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू स्लाइड्स कि मैंने नोट्स कैसे बनाती हूँ जब मैं वो पॉडकास्ट सुनती हूँ, एंड व्हाट आर माय लर्निंग्स एंड हाउ इट इज हेल्पिंग नॉट ओनली जस्ट इन माय बिजनेस बट पर्सनली मुझे कितना हेल्प करता है। So these are some of the few podcast notes if you can go through. I think notes का एक importance ये होती है कि मैं एक मेरे लिए recap हो जाता है कि by chance there are so many interesting topics. So कई बार अगर आपको recap करना होता है, कुछ चीज सीखनी होती है, then you can go through these notes and you know it's a recap for me कि मेरे लिए एक learning वापस हो जाती है। And मुझे लगा Sumeet sir has just specifically designed this podcast for me and send it because as a youngster जब आप एकदम से आपके married life में जाते हो and couple की तरह काम करने लगते हो, first I was working as single and now you're working as a couple, तो there are एक coordination और एक choreography ही अलग हो जाती है business की. So this has helped me personally. Thank you so much. Awesome, Shruti. So, to my understanding, आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की जब आप बात कर रहे हैं विजन 100 कैम की, तो
आज भी हम वहीं पे लाइव हैं, द ऑडियंस इज लाइव, तो इट इज ब्रिंगिंग द इम्प्रूवमेंट जो चाहिए हमें डायरेक्ट सेलिंग और एमवे को लीड करने के लिए, इट इज ब्रिंगिंग इन यू। एंड स्पेशली आई लाइक इट कि जैसे आप एक स्पॉटिफाई चैनल से पॉडकास्ट ना सिर्फ सुनते हैं, उसको कैसे आप यू टेक द पॉइंट्स आउट ऑफ इट। और आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो डाउनलाइंस है, आपकी जो टीम है, उस नोट से आप उनको भी काफी हेल्प मिलती होगी। एंड सेम टाइम इट इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू योर मेंटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक अ ग्रेट जॉब विश्रुति, थैंक्स फॉर शेयरिंग इट एंड ग्रेट गोइंग। सो वी हैव डॉक्टर मेमुना जी जो कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो डॉक्टर मेमुना प्लीज। थैंक यू गुरन सर। या अभी जैसे कि विश्रुति मैम ने बोला है कि लाइक वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड चल रहा है, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म से, उन्होंने बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर दी है, राइट। तो इस चीज का बेनिफिट हमें भी मिल रहा है। वो ये चीज है कि आप इस बिजनेस को डिजिटली प्लेटफॉर्म के जरिए फ्रीडम पे बिल्ड कर सकते हो, राइट। एज आई कैन से कि अभी मैं लाइव हो रही हूँ आपके सामने सऊदी अरब से, राइट। सो मुझे इंटरनेशनली ये बहुत आसानी पैदा कर रहा है कि आई कैन कनेक्ट माई टीम, आई कैन कनेक्ट माई अपलायंस, आई कैन कनेक्ट माई इकोसिस्टम एंड आई कैन इजीली टीच माई टीम देयर, राइट। तो पहला ये है कि मुझे फ्रीडमली बहुत आसानी तरीके से बिल्ड करने को मौका मिल रहा है बिजनेस। एंड सेकेंडली इज आई वांट टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर अभी जो लेडीज होती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या चाहे वो वर्किंग लेडीज हो, लाइक स्टूडेंट्स हों, क्योंकि जब मेरे पास जब ये बिजनेस आया था तब मैं अपनी डेंटल स्टडीज की फर्स्ट ईयर में ही थी एंड आई वाज वर्किंग ऑन, मतलब स्टडीज भी कर रही थी और बिजनेस भी कर रही थी। तो मेरे लिए बहुत टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। एंड देयर वर सम सर्टेन पॉइंट जहां पे लेडीज बाहर नहीं जा पाती हैं अपने बिजनेस सेशंस अटेंड करने के लिए या फिर प्लान्स दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत आसान तरीके से उन लोगों के लिए बना दिया है, लेडीज के लिए, कि वो आसानी तरीके से अपने घर के रूटीन के साथ साथ, अपने लाइफ के रूटीन के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी घर पे बैठे बैठे आसानी तरीके से बिल्ड आउट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पॉइंट। थैंक यू। दिस इज सो अमेजिंग। मतलब आपने शेयर किया सऊदी अरब से आप अभी कनेक्टेड हैं, लाइव हैं, तो ये ना हम कहाँ जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। आई एम सो सरप्राइज कि पहले क्या होता था कि अगर लीडर गायब हो जाता था ना, एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने चले जाता था या अपने सिटी या स्टेट से बाहर चले जाता था, लोग बहुत उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक होने लग जाता था कि हमारा लीडर नहीं यहाँ पे है। सो यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर टीम्स एंड योर पीपल थ्रू डिजिटल, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता होगा। सो ग्रेट जॉब आई थिंक डॉक्टर मेमुना, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स, स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो अपने घर पे बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं। विश्रुति एज सेड कि ये बिजनेस 1959 से वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को प्रमोट करता आ रहा था, और आज 62 साल बाद हम उसी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को एक डिजिटलाइजेशन से आगे कितने जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। सो दिस इज ग्रेट। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु वांट्स टू ऐड ऑन। सो नील, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच गुरंज भाई। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस की जर्नी में मैंने एक चीज सीखा है कि इस बिजनेस में दो चीजों की मास्टरी बहुत जरूरी होती है। एक होता है प्लान और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब प्लान की बात करें गुरंज भाई, तो आज की तारीख में अगर हर व्यक्ति अपनी कोच और अपने मेंटोर के साथ मिलकर प्लान में बहुत अच्छे से मास्टरी ला सकता है। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिजिटली हमको एमवे भी बहुत सपोर्ट कर रहा है इस समय पे। अगर हम देखें आज की तारीख में, तो मुझे हमेशा एक चीज लगता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर एजुकेशन इज ऑन डिमांड, और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स एमवे की तरफ से अवेलेबल है, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे हम फोकस कर सकते हैं जहां से बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात गुरंज भाई मुझे ये लगती है, और मैं जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये सारी की सारी चीजें हम अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे कर सकते हैं। माने कोई व्यक्ति अगर नाइट शिफ्ट पे हो, कोई डे शिफ्ट पे हो, जब भी मौका मिले एमवे एकेडमी से बहुत सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारे एप्स को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम और हमारे पूरी टीम, हम सभी लोग एक ही पेज पर, सिंगल पेज पर रहकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ गैदर कर सकते हैं। माने हजारों लाखों लोग हमारी टीम में एक ही इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं और सभी का माइंडसेट और थॉट प्रोसेस एक हो रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आने वाले समय में, और ये जो समय चल रहा है खास करके नाउ, टीम बिल्डिंग
and volume creation is much more easier, it is much more faster, और कहीं ना कहीं अब हमारा टास्क है इसको कैपिटलाइज करना. थैंक यू. सुपर. आई लाइक द पॉइंट कि इस बिजनेस में आते ही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लान एंड प्रोडक्ट. और प्लान को समझने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए बहुत डिजिटल टूल्स आज हैं, घर बैठे समझ सकते हैं. सेकंड थिंग आई लाइक दैट कि डुप्लीकेशन, कि अगर सेम चीज हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हमारे लोग कर रहे होंगे, इस बिजनेस में सक्सेस ही वो है कि एक काम को कितने ज्यादा लोग एक टीम में कर रहे हैं. थैंक्स नील, जस्ट पॉइंटिंग आउट दीज पॉइंट्स. बहुत जबरदस्ती आपने पॉइंट्स को शेयर किया है. तो आगे इस बिजनेस को आई थिंक जब प्लान दिखाते हैं, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, सबको दिक्कत आती है. सो आई थिंक इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से नील ने किया है. तो आगे वी हैव केशव टू ऐड ऑन टू इट. सो केशव, ओवर टू यू. थैंक यू गुरन जी, सो मच थैंक यू. तो पहले अगर हम लोग पहले प्लान करने जाते थे, तो अगर मेट्रो सिटीज में है तो पता चला कि अगर कोई 6 बजा बंदा का कोई पर्सन कोई जॉब छोड़ रहा है तो 2 से 3 घंटे तो खाली उसको ट्रैवलिंग में कभी कभी चले जाते थे. ठीक है, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से अगर हम लोग देखें कि 1 to 1 करना कितना आसान हो जाता, मेरा टाइम बच रहा है. पहले ये था कि पहले जाना है, उसको प्लान दिखाना है, फिर 2 डेज के बाद उसके पास जाना, फिर उसका गेटिंग स्टार्ट करना है. अगर इन केस अगर कोई उसके पास कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उसके आके क्वेश्चंस को डाउट्स क्लियर करना पड़ता है. तो एक पर्सन को लाने के लिए इस बिजनेस में बहुत सारी मेहनत को करना पड़ रहा था. लेकिन आज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से 1 घंटे में, आधे घंटे में सॉल्व हो जाता है. पहले मेरे पास एक लिमिटेशन था, मैं अपने शहर में खाली बिजनेस कर सकता था, मैं खाली अपने स्टेट में कर सकता था. लेकिन आज वो लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में हो चुका है. आज मैं भले चाहे यहाँ बैठा हूं, मैं कहीं से भी इस बिजनेस में अपने टीम में किसको भी बात कर रहा हूँ कितने इजी तरीके से, बिना बहुत ये नहीं कि बहुत लंबा जाना है, सोचूं मैं कि आज जाऊं कि ना जाऊं. आज मेरे पास समय उसका मैच हो जाता है. तो वहां से ये सब चीजें वहां पे हमको इजीली तरीके से ये सब हो रहा है वहां पे. तो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का 1 to 1 करके यहाँ पे, बल्कि यहाँ तक कि हम तो यहाँ पे खुद की यहीं पे एक लिंक बना के फटाफट 20-15 लोगों को, जो हमारे कोर लोग हैं जो कॉलिंग कर रहे हैं डे बाय डे, फटाफट 1 से लेके 20 नंबर तक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम ये सारी चीजों कर लेते हैं. वहां पे हमको ये पहले ये हो रहा था कि एक आदमी की कॉलिंग भी करवानी तो खाली एक आदमी के साथ, लेकिन आज एक साथ जब कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक के बाद एक पर्सन वहां पे अपनी कॉलिंग करते चला जा रहा है वहां पे. तो ये सारी चीजें इसमें बहुत ही यूजेबल है आज के डेट में. बहुत जबरदस्त केशव, जो मेरे दिमाग में जो समझ आ रही है दैट अगर आप पहले काम एक व्यक्ति से करते थे, अभी डिजिटलाइजेशन में वही काम अब 20 या 100 लोगों से हो सकता है, इजीली तरीके से हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को कॉलिंग करना सिखाना है, जब मैंने भी नया बिजनेस में आया था, तो मेरे बुआ जी तो बुआ जी हैं, लेकिन बुआ जी को जब एमवे समझाना था तो फोन जो मेरा था वो 10 किलो का हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कैसे कॉल करूं. सो मैंने अपने मेंटर को फोन किया, उन्होंने बताया कि हाउ टू डू अ कॉल पे कैसे एक लोगों को समझाना है और कैसे एक बुक करना है, प्लान बुक करना है ना, या फॉलोअप जो भी करना है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना है. सो अगर डिजिटल पे बैठे हो, प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, तो एक बार आप लाइव डेमोस्ट्रेट भी कर सकते हो कि कॉल कैसे करना है. लाइव कॉल भी हो सकता है यहाँ पे बैठे बैठे. एम आई राइट? अगर केशव इसको सही समझ रहा हूँ, लाइव डेमो, यस, मतलब वही चीज है कि जब हम कोई भी चीज सिखाना चाहते हैं तो कितने लोगों को हम डिजिटलाइजेशन पे सिखा सकते हैं. तो जो मुझे समझ आया केशव, एम आई राइट? जो मैं राइट. अब बात ये यहाँ पे ये आ जाती है ना कि अगर हम लोग जब करते हैं तो डर तो स्वाभाविक बात है, हर आदमी को लगता है. जब यहाँ तक कि आज के डेट में किसी को फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने बोलो तो 2 से 4 घंटा भी वहां पे फटाफट चला देता है. यहाँ तक कि मैं तो जब कॉलिंग करने में बैठता था कि तो पहले सोचता था कि पहली बात कॉल करूँ कि ना करूँ. अगर अप्लाई ना गई बैठ के कि करो कॉल तो डर लगता था और सोचता था कि हे भगवान अगर कॉल लगा भी है तो वो उठाए ना, वही ठीक है सबसे पहली चीज. तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वहां पे क्या करते हैं, लाइव डेमो में वहां पे फटाफट अपने कॉलिंग एक के बाद एक साथ हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ये नहीं कि एक कॉलिंग फिर 2 कॉलिंग, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है वहां पे उसकी जो कॉलिंग है उतनी ही शार्प होते चली जाती है. पहले कॉलिंग 3 से 4 मिनट की होती थी क्योंकि सामने वाला भी उस तरीके से बात करता था, वो फिर बताने लगता था कि ये नहीं है वो नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए अगर किसी को नो भी मिलता है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में, वहां पे लाइव हम जब करते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग इंकरेज करते हैं कि अभी मुझे हाँ मिला है 4 नाक के बाद, तो आप भी अपना 4 कॉल आगे करके उसको वापस एक कॉल करिए, आपको भी जरूर वहां पे हाँ मिलेगा. तो हम इस तरीके से वहां पे कर लेते हैं.
वेरी स्मार्ट केशव, वेरी स्मार्ट, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग. बहुत थैंक यू शेयर करने के लिए पॉइंट का, ये बहुत बड़ा पॉइंट था आपका. थैंक यू. सो आई थिंक वी हैव अनदर यंग जैम विद अस. यशवी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आगे? यस डेफिनेटली गुरंस भाई, मैं इन्हीं के लाइंस में कनेक्ट करना चाहूंगी जैसे केशव भाई ने बताया किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म इज हेल्पिंग अस बिल्ड अ बिजनेस ऑल टुगेदर. मैं कहना चाहूंगी कि इसी के साथ साथ वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग द न्यू पर्सन बट वी आर कनेक्टिंग विद देयर फैमिलीज ऑल टुगेदर. आई मीन अगर फिजिकल वर्ल्ड में अगर मुझे उनके फैमिली को मिलना था, एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, राइट? आई मीन यू कैन मीट देम मे बी वंस और ट्वाइस, बट नाउ द ब्यूटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू कैन कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद देयर फैमिली. एंड उससे क्या देखा है हमने कि अब ना आप सिर्फ टेक्निकली बिजनेस नहीं कर रहे हो बट यू आर लिटरली बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑल टुगेदर. आप एक एक्सटेंडेड फैमिली डेवलप कर रहे हो वेरिन इन योर, आई मीन सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप यंगस्टर से बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग टू अ यंगस्टर, आपने इमीडिएट उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया आफ्टर 1 or 2 minutes, तो वहां पे नाउ यू आर ग्रोइंग अ, I would say an extended family, जो all together वो youngster को इतना ज्यादा confidence boost कर देता है because now that youngster knows that yes I have my parents support all together. Same goes, मतलब overall अगर कोई lady है, gents है, इस business को बिल्ड कर रहे हैं, we can connect with their spouses, we can connect with their children, and इससे क्या हो रहा है ना, I've seen कि वो technical business is now converting into an emotional ecosystem जहाँ पे we are helping them grow and develop more stronger. So that is what I've observed. Physically वो उतना आसानी से हम नहीं कर पा रहे, but digital platform has made it so beautiful that now we are literally building an ecosystem all together. So yeah, that is what I would like to say. Superb. I think ये पॉइंट आपका बहुत बड़ा पॉइंट है कि सिर्फ आप एक व्यक्ति को नहीं कनेक्ट कर रहे, उसकी पूरी फैमिली को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को प्लान दिखाना है या पीपीटी दिखाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो प्रोडक्ट समझाना चाहता हूँ, सो यू आर इनवाइटिंग द होल फैमिली कि आप आ जाइए, हम जूम के ऊपर एक है ना प्रोडक्ट सेशन करते हैं, तो सिंप्लीफाइड आप एक पीपीटी पूरी फैमिली को दिखाएंगे, चांसेस बढ़ेंगे कि वो पूरे की पूरी फैमिली एक अच्छे यूजर में कन्वर्ट हो सकती है एंड वो रेकमेंड भी कर सकते हैं आगे. अगर मैं आपकी एग्जांपल लूं, लिविंग इन मुंबई एंड एज अ सिंगल गर्ल, बहुत मुश्किल होता है लोगों के फिजिकली घर पे जाना या उनको अपने घर पे इनवाइट करना. सो दिस इज ऑल ग्रेट एंड मुझे लगता है कि सबने बहुत वैलिड पॉइंट्स एंड बहुत अमेजिंग पॉइंट्स शेयर किए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर. एंड अभी मैं इसको समराइज करूं, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे बेटर अंडरस्टैंड करना है थ्रू डिजिटलाइजेशन. कौन से ऐसे टूल्स हैं आप पिक कर सकते हो फ्रॉम विजन 100, स्पॉटिफाई एंड ऑल द स्टैंडर्डाइज प्लान. जो मैं कहूंगा कि एक अगर आपका स्टैंडर्डाइज प्लान होगा, वही आपकी टीम में डुप्लीकेट हो रहा है, एक काम को सब लोग कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट को दुनिया समझ रही है, रेकमेंड कर रही है, एंड वेरी सून ये डुप्लीकेशन की पावर ऐसी है कि डिजिटलाइजेशन में आपको पता भी नहीं लगेगा स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी कैसे आगे बढ़ सकता है. सो दिस इज ऑल सो ग्रेट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग. बट सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं बिजनेस में आया था, I was 21 एंड माई मेंटर, पढ़ने पड़ेंगे और ये कैसे होगा सब कुछ, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ूंगा, कितने मार्क्स आएंगे, ये तो कभी सोचते ही नहीं है. बस ये था कि कर इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं. सो दिस इज अ वैलिड कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग या एमबी शुरू करते हैं कि हमारी वाई क्या है, वाई आर वी ऑल हियर, और आगे क्यों जा रहे हैं. 98% इट्स ऑल अबाउट वाई, 2% इज हाउ, एक होना कैसे है, कौन आएगा, कैसे करेगा, कैसे होगा, कौन क्या कैसे प्रोडक्ट देगा. सो 98% इज वाई. सो आई थिंक ये मैं चाहता हूं कि आपके जब इतना अच्छा बता रहे हो सब चीजों के बारे में, तो मुझे लगता है कि आपकी जो वाई है वो भी इतनी ही स्ट्रांग होगी जैसे आपके ये डायरेक्ट सेलिंग एंड डिजिटल के पॉइंट्स थे. सो आई एम ऑल्सो क्यूरियस, और पूरी ऑडियंस भी आज क्यूरियस है कि वाई ऑल ऑफ यू आर हियर और इसको आगे क्यों लेके जा रहे हो. सो वाई आर यू हियर और क्यों कर रहे हो, व्हाट इज योर वाई. सो आई थिंक अगर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, केशव. यस गुरज जी. वाई यू मैन? क्योंकि वाई आए, मैं ही क्यों, मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले से ही मैं उस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं जहां पे गुरु और शिष्य ये परंपरा हमेशा चली आ रही है. जब से शायद से स्कूल जाना शुरू किए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वहीं से हमने सब चीजों को सीखा. और जब इस बिजनेस को मैंने यहाँ पे देखा
कि इतना मैं समझ पाया कि यहाँ पे वो फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। और जो मेरे मेंटर हैं वो मेरे पिता हैं, मिस्टर महेश अंकिरन दुबे, इज अ डायमंड ऑलरेडी इन दिस बिजनेस। तो हमने देखा कि जब हमने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, तो हम हमेशा देखते थे कि सुनते थे कि हाँ सुन रहे हैं, कुछ कुछ करते भी थे उसमें से, लेकिन थोड़ा जब बोलता है ना कि मैच्योरिटी तुरंत नहीं आ जाती है, थोड़ा समय लग जाता है। तो समझ में आया कि रात को अगर 2 बजे भी मेरे घर पे कोई अगर उनसे सीखने आ रहा तो कुछ तो बात है। तो हमने देखा कि जब हमने भी उनसे सीखना शुरू किया तब समझ में आया सुनने में और उनसे सीख के काम करने में बड़ा फर्क होता है। तो हमने उनको अपना मेंटर माना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब इन्वॉल्व हो गए इस बिजनेस में, वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि जेनवाई का हमेशा रहता है कि किसी एक लाइन को कोई सुन लिया, स्पीकर को हिट हो गया तो पता चला कि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं भी उसमें कहीं था कि बहुत सारे हर हफ्ते एक नए स्पीकर को सुनना कहीं पे, और फिर उसी बात को मैं फिर कंटिन्यू करता था। फिर कुछ दिन बीतता था, फिर एक नया स्पीकर, फिर वो सारी चीजें हमारे साथ होती है कि फिर उन्हीं की बात को मानना है। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को जज किया और देखा कि तुम्हारी स्पीड और जो तुम्हारा एक तरीके से तुमको जहां जाना है उसको सही जगह पे लगाओ। जैसे कि उन्होंने मेरे को बताया कि एज ए फादर नहीं, एज ए मेंटर मैं आज तुमको बोल रहा हूँ केशव, कि महाभारत में भी अगर देखने जाएंगे तो द्रोणाचार्य बहुत तुमको मिल सकते हैं, लेकिन कृष्ण तो सिर्फ एक ही मिलेंगे रण में आपको। और जब उन्होंने मेरे को ये वो लाइन बोली, पूरा हिट हो गई इधर से लेकर इधर तक का। क्यों? क्योंकि जब महाभारत हमने सबने देखा है तो कृष्ण हमेशा बोला है हाँ कि जल भी मैं, वायु भी मैं, आसमान भी मैं ही हूं, धरती भी मैं हूं, पूरा ब्रह्मांड में ही हूं। फिर उसके बाद उनको नहीं डिस्क्राइब करना था माय फ्रेंड्स कि मेंटर का मतलब क्या होता है इस बिजनेस में, वो मुझे खुद को मेंशन करना था उस वक्त कि यार मेंटर का असली वैल्यू क्या है, जो सबसे बड़ी चीज आई है। और एज ए जेनवाई, क्योंकि मैं जिस हिसाब का एक स्टूडेंट था, वो अगर शायद से वो मेंटर नहीं होते तो ये भी यहां नहीं होता आज की डेट में। एज ए जेनवाई मेरा ये पर्सनल रिकमेंड है सबको कि आपका जो मेंटर कोच होना चाहिए वो हमेशा एक तरीके से स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि मैंने पढ़ा भी कि अगर आपका कोच ढीला है तो शायद से आपकी जिंदगी कहां जाएगी उसको भी नहीं पता है। तो मेरे मेंटर जो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जो 24 घंटे का हिसाब मांग ले उसको मेरा बाप श्री महेश कुमार कहते हैं। माय फ्रेंड्स, दैट मच स्ट्रिक्ट इज माय फादर। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो मेरे को सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं डालते, तो शायद से वो बिजनेस करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता माय फ्रेंड्स। हर चीज जो मैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत फोकस करवा दिया, यहां तक कि मेरा मोबाइल नंबर मेरा कॉलेज का चेंज करवा दिया। क्योंकि वहां पे जब आप अपने फील्ड में जाके किसी को बोलोगे तो मुझे कुछ बड़ा करना है, तो शायद से कुछ लोग आपके हंस के उड़ा देंगे आपकी मजाक। लेकिन वही जगह पे आपका मेंटर ये कहता है कि आप इतिहास लिख सकते हो, यू आर द चैंपियन। तो मेरे लिए ये गुरु शिष्य बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है, शायद बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। Awesome, केशव, awesome. Thanks for sharing this why. और आपकी why मुझे पता, सबको क्लैरिटी हो रही है कि कितनी वो स्ट्रॉन्ग है, and you are going great. So, Avinash, why you? Yes, Gurans. Why you? Yes, Guran. So, just like how Keshav said that he required mentorship badly, for me, I needed personality development badly, because like Mr. Sumeet sir introduced in the beginning, he said that when he used to come over to my place, I used to hide in the room, right? So I was really a shy person, like many people today that we are also facing when we prospect them. We are very shy, we are introverted, we have a low level of confidence, we have a low level of self-esteem, and also we are very, very afraid to speak in public, right? So that was one of my biggest fears, public speaking as well. But thanks to the great opportunity of Amway, and also thanks to the great mentorship of the Vision 100 team, the amount of personality changes that have happened over the years with me, it is simply unimaginable what I could have imagined before.
Okay, and that is now I'm able to speak confidently even in front of thousands of people and talk about this great opportunity. And this is something where I have found that these particular is why many people struggle to develop themselves in life. But thanks to this organization and thanks to the Vision 100, especially the podcast, we're able to get those life skills and we're able to develop ourselves better and better so that we can reach our best potential going forward. And what are the rewards that I got from this personality development? I was able to get control over my finances, which I could not have seen in any other job or any other career that I could find. And thanks to that control over finances, I had a choice to retire early. And outside of, the Amway circle, I have never met till today in my life a youngster who has retired early. Even if they are working and they are earning very well, they are earning lakhs of rupees per month, they are not, I've never seen them retire. They're still working for someone else. But only in the Amway circle am I able to find youngsters like myself who have retired early. And that was one of the greatest gifts that I found, was what brought me into the business. And I'm really grateful for that. I can relate very well, my friend, early retirement. और मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ घर पे बैठ गए हैं, पैसा आ रहा है और आप मजे कर रहे हैं. अर्ली रिटायरमेंट मीन्स यू कैन हैव द लाइफ चॉइसेस, जो करना चाहते हैं जब भी करना चाहते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग व्हाई अविनाश फॉर द अर्ली रिटायरमेंट, और आई एम एबल टू गेट इट बाय एज 25 एंड मेनी अदर्स हैव डन इट बिफोर मी. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई कि हम लोग इस बिजनेस में क्यों आते हैं. सो थैंक्स फॉर शेयरिंग Avinash, and I think we have Sangeet with us. Why you, Sangeet? As a student, you are building it. Yeah. So personally, according to me, my main reason of why I'm building. So as a youngster, I'll be frank, my why reason isn't so prominent or so fixed or focused like a lot of people. So it's pretty normal. But me personally, I'm a second generation into this business. Downlines of Dr. Satyaragan, Sugna Satyaragan. So they are my parents. So they have been in this business. So as Sumit ji introduced me from a very young age. So they are diamonds in this business. So I have seen all those glamorous things, all those, the crowd, the energy, the vibe, all the foreign trips they go, everything you can just imagine, right? But that wasn't the time when I decided to build this business. When my parents were doing extremely well in this business, I wanted to become a veterinary doctor like my father. But when the business came down crumbling due to several reasons, so such a big business came crumbling down to almost nothing. So those experiences, I watched my parents of how they went through each day, of what they did each day, all the activities, the mindset, the willpower. So these subtle things are the things that boosted me. I was like, if they are facing such hardships in life and they are still doing this business with people around them, there must be something in this. So that was one of the strongest reasons why I took this business. So even though there's a strong reason there, when I started this business, I started with like 100% optimism. I'll become a silver in like 1 month. So that was not the reality. It doesn't happen that way, 100% optimism. So as a youngster, I thought that it will happen. Everything that I think will happen immediately. But it didn't happen. Real life struck. So no one knew that you are the son of this guy. No. They don't even know what a platinum is, diamond is, silver is, nothing. So they'll just instantly reject. So even with that, I built my business offline, even me being an introvert, then I had to go to college. So when I went to college, I couldn't hold my team. They were in Tirunelveli, and I came to Coimbatore. So when I came here, I didn't know how to manage them, and my team instantly broke. So all the optimism went down to zero. So in this time, certain things that happened before I joined the business came to my mind. So one thing is the things that my parents went through. The second thing is the people, my parents' team who stuck with them. And another one important thing was we had a success seminar. When we were struggling, when my parents were struggling this business, we had a success seminar of just 30 people. A success seminar with just 30 to 40 people. And Mr. and Mrs. Sumit and Tanya ji, both of them came to such a small event. And they encouraged. That time I was just like connecting all the electricals and all these things. And they gave the motivation, and subtle aspects like this
created some drive inside me to find a purpose. So personally, according to now, as a college student, I have paid, I will proudly say that I have paid over 2 lakh in tax, and I am a 6-figure earner studying in college. And I'd like to end with saying that my aim in life is just to prove to youngsters that life isn't till college ends. So life is something that you enjoy throughout the process. So that is where work-life integration comes. And I think that Amway is the best opportunity. And I want to be a living example of that. Life is something that you must enjoy the whole process through and out, and not just during your college life. And after that, you become a grumpy old man. And a grumpy old man. And this is awesome. This is awesome. You are giving the homework, So I was just about to calculate how much money you are earning because you are paying 2 lakhs in taxes. So I was just calculating the amount of money you are making in the whole year annual income. So this is great. You are young. You are making money out of it. A strong why. Especially मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग चैंपियंस जो ये लीडर्स होते हैं ना बड़े बड़े, दे आर नॉट कि जब आप बड़े बन जाते हैं तो आपके पास पैसा होता है, दैट इज आपको लीडर्स बोला जाता है. लीडर्स बन के कभी बार अप एंड डाउन्स भी आते हैं. दैट टाइम व्हाट आर यू डूइंग इज एक्चुअली लीडर का कैरेक्टरिस्टिक है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू पिक दिस बिजनेस नॉट बिकॉज के आप लोगों को देख रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट आपने वो देखा कि जब उनके पास उतना बड़ा बिजनेस या वो नीचे आया किसी भी रीजंस करके, XYZ करके, दैट टाइम व्हाट योर पेरेंट्स वर डूइंग दैट इंस्पायर्ड यू टू बिल्ड दिस बिजनेस. एंड स्पेशली अवर मेंटर्स Sumita and Tanya, they came out for you. They are for everyone, for the national team, and we are so proud of them. So I think we are so great and united team, और ये बहुत जबरदस्त आप मैसेजिंग दे रहे हो मुझे लग रहा है for the entire nation. And I think आगे बढ़ते हैं. So Yashvi, you're so young and inspiring. Why are you here? और क्यों आगे जा रहे हो? Definitely, Gurans bhai, I would like to add to that. So, जब ये पूछा गया ना कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, मैं एकदम से फ्लैशबैक में गई मेरी जर्नी में कि मुझे इस बिजनेस से जुड़ाव क्यों हुआ. एंड बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मुझे पता चले. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन 2 to 3 of them. सबसे पहला जो मेरे लिए था ना, दैट वाज द कनेक्टिविटी, द इकोसिस्टम हियर. दूसरा मैंने देखा द फ्लेक्सिबिलिटी, आई मीन समथिंग फिनोमिनल. एंड फिर पता चला अबाउट द सेफ्टी फैक्टर्स. तो आई थ्रो सम लाइट ऑन ईच. अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या देखा है. सो एज वी एंड यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने सॉ द एसोसिएशन, मैंने देखा कि यहाँ पे you are not treated as per the achievements you have in life, but you are respected and welcomed with whole heart for the person you are. And like, I mean, literally I saw कि मैं यही सोच रही थी, यशवी बाहर की दुनिया में ऐसा एसोसिएशन कहाँ मिलने वाला है जहाँ पे people will be welcoming you whole heart, not for what you are today, but what you are going to become in coming future. तो ये चीज मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाई थी कि नॉट नेसेसरी आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, यू जस्ट नीड टू कम एंड ब्लेंड इन विद द इकोसिस्टम, बाकी एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा आई वुड से पुल फैक्टर था. दूसरी चीज, मैंने जब इस बिजनेस को देखा, आई वाज अ स्टूडेंट बैक देन, आई वाज ऑलरेडी अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड देन आई हैड टू चूज टू बिल्ड द बिजनेस. तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि मुझे सभी चीज को जस्टिफाई करना है. आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो आई नेवर वांटेड टू डिस्टर्ब माय स्टडीज. टॉकिंग अबाउट मेकअप, हमारे प्रोफेशनल आवर्स बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते. समटाइम्स यू हैव टू वर्क सुपर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड समटाइम इट गोज लेट टिल नाइट. तो ऐसे माहौल में मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब करने का अगर सोचती, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली, बिकॉज obviously वहां पे मुझे वो टाइम फ्रीडम नहीं मिलता. बट अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, इट इज सो फ्लेक्सिबल दैट irrespective of what time you have available, you can build a business. And being a young girl, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो मुझे इस बिजनेस में अट्रैक्ट की, एंड मोर ओवर मेरी फैमिली का मुझे जो सपोर्ट मिला था, दैट वाज द सेफ्टी एंड द वैल्यूज दैट वी कैरी.
I mean, छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. I stay मेन सिटी से, I live a little far. So ओपन मीटिंग का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे लिए I had to travel 100 kilometers to and fro to attend ओपन मीटिंग. तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा पेरेंट्स के माइंड में कि यंग डॉटर, उसको हम इवनिंग में भेजते हैं, वो रात को घर आते थे just 12:31 at night. How will we send our daughter? But the moment they saw the association, they were like 10% worry free that हमारी daughter जिस माहौल में जा रही है, it is 100% safe, nothing to worry about. I mean, as I already mentioned, जो हम एक एक्सटेंडेड फैमिली वाला माहौल मिलता है, वो कुछ चीजें ना, ये सारी चीजों को जब मैं कंबाइन करती हूँ, इट मेक्स मी रिमाइंड why I began into this business and what my journey has been. So yeah. Awesome, crystal clear, I think, Yashvi, and बहुत जबरदस्त मैसेजिंग थी, स्पेशली योर द सेफ्टी पार्ट. यू नो, हमारे बिजनेस में मैं कहूंगा कि यंग गर्ल्स, द माइनॉरिटीज, एंड देयर आर मेनी मेनी अदर पीपल जो इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस को पकड़ लेते हैं बिकॉज ऑफ अवर सेफ्टी, ऑल बिकॉज ऑफ अवर टीचिंग ऑफ कार्डिनल रूल्स. इतना इम्पोर्टेंट है कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना और अपनी टीम में टीच करना कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो टीम लोग हैं, चाहे जो हमें देखते हैं, कि दे फील सेफ अबाउट दिस बिजनेस. सो वेरी नाइस, वेरी क्रिस्टल क्लियर मैसेजिंग यशवी. आई एम सो हैप्पी कि आज जो भी मैसेजिंग आ रहा है इतना जबरदस्त आ रहा है, एंड आई एम लविंग इट लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो वी हैव अनदर यंग इंस्पायरिंग, मैं कहूंगा कि एक वुमन एंटरप्रेन्योर जो हमारे साथ हैं. सो विश्रुति, व्हाई आर यू हियर, व्हाई यू, एंड मूविंग फॉरवर्ड? Okay, so I've always been a very ambitious child who always wanted to be best at everything, whether it was sports, co-curricular activities, or studies. But turns out I was best at everything, but padhai mein I was an average bacha. And thank God my parents were okay with it because they've been running their own business. So उन्होंने एक चीज मुझे हमेशा कही थी, भले ही पढ़ाकू कीड़ा ना बनो, बट स्ट्रीट स्मार्ट लाइफ में होना बहुत जरूरी है. एंड मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ऐसा समर वेकेशन था वेयर आई हैव जस्ट लेड बैक एंड डिड नथिंग. या तो कोई समर कैंप होता था स्कूल में, या फिर आई हैव डन लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स इन कॉलेज. I started working at the age of 18. Along with my college, I joined a youth-run organization, ISEC. And right after my college, I just joined an MNC in their marketing team at Gurgaon. You know, उस टाइम लगा कि लाइफ सेट हो गई है. यू नो, बहुत रेप्यूटेटेड कंपनी में एंट्री मिल गई है, सैलरी भी अच्छी है, एंड विद टाइम यू विल गेट प्रमोटेड एंड अचीव हायर लेवल्स. एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज अ ट्रैवलिंग जॉब, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी. बट यू नो, इवेंचुअली आई रियलाइज समथिंग, आई एम नॉट माई ओन बॉस एनीमोर, एंड आई एम एक्चुअली इन गोल्डन शैकल्स, where I am traveling in airplanes, staying at nice 5-star hotels, but ultimately subah se leke sham tak I'm working hard in order to build someone else's dreams and goals and not mine. You know, someone who is doing job, they can relate to it that ultimately na ek life एक boring खिचड़ी बन जाती है, वो हमेशा से एक रट सिस्टम में रह के. And at a point it comes ke you stop even dreaming about butter chicken and biryani because passion hi khatam ho jata hai. I'm so glad that I found this business which actually worked as a CPR for my dreams and my ambition, jo slowly fade out ho raha tha. I was actually introduced to this business my then friend and now husband Manik Manhas, and उस टाइम मैंने इस बिजनेस को इतना सीरियसली लिया नहीं बिकॉज जॉब मेरी ज्यादा प्रायोरिटी पे था. एंड बट आई यूज्ड टू ऑब्जर्व हिम, आई हैव सीन हिम एंड दैट ही वाज फॉलोइंग हिज पैशन, ही वाज बिल्डिंग हिज करियर व्हाइल स्टेइंग एट हिज होम विद हिज पेरेंट्स. तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रैंकली जेलसी फैक्टर आता था कि मैं क्यों नहीं. सो बस ये मैं नहीं क्यों जो फीलिंग आती थी ना, दैट मजबूर मी कि मैं ये बिजनेस सीरियसली लूं एंड कुछ करूं, एक सीरियस एक्शंस लूं. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया बिकॉज कुछ चीजें मैंने इस बिजनेस में आके रियलाइज की जो फ्रैंकली मैं
नहीं करती अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती. While being in association with my mentors and observing all the success stories, and I understood कि मैं अपना करियर बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकती हूँ यहीं अपने इंडिया में रहकर. And I don't want to be one more sorry case of brain drain. My passion of traveling around the world with people I love, and my first and utmost passion of being so wealthy that money should never be a factor to kill my dreams. And my passion to create positive impact on society, especially youth. And Amway envisions the same, helping people living better lives with pillars of freedom, family, hope, and reward. So in the end, I just want to say to all the beautiful people who are connected with us tonight that never, never let go of your passion. Passion fuels dreams, so keep igniting it. Thank you so much. सो अमेजिंग विश्रुति, सो अमेजिंग. अभी ना आपकी बातों में मुझे याद आ रहा था कि इस बिजनेस में चाहे हमने भी बहुत सारे लेवल अचीव किए, बट मजा आ जाता है इसके सामने जब हमारे विजन बोर्ड पे हमारे गोल्स लगे होते हैं ना, वो ड्रीम्स लगे होते हैं, और उस पर दिन रात जब काम कर रहे होते हैं, वी नेवर सी कि हमारे बैंक अकाउंट में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स में यही बात करता हूँ कि अगर आप एक अच्छे कॉर्पोरेट में भी सेट हो गए, आपका एक अच्छा इनकम जो आप ड्रीम करते थे वो मिल भी गया ना, कुछ सालों के बाद यू विल गेट बोर ऑफ इट. एज यू मेंशन, खिचड़ी पक जाती है, वही सेम चीजें हर रोज आ रही हैं. बट व्हाट इंस्पायर अस, व्हाट मोटिवेट अस, और जो जिंदगी में मजा आता है, दैट इज विद द गोल्स एंड ड्रीम्स. और स्पेशली इन द डायरेक्ट सेलिंग एंड एमवे बिजनेस में जब हमारे टीम मेंबर्स की जब हम हेल्प करते हैं, उनको 6%, 9%, 50% ले जाते कई बार हमारे साथ वो 21% करते हैं और हमारे साथ फॉरेन ट्रिप में जाते हैं, तो वो जो मजा है ना पूरे साल में करने का, देयर इज, उसका तो कोई मेरी नहीं है पूरी दुनिया में. सो दिस इज ग्रेट. आई थिंक वेरी वेल मेंशन्ड विश्रुति. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस. एंड अभी वी हैव अ यंग मैन, यंग बॉय विद अस. नील, why are you here and what motivates you, man? Yes, गुरन भाई, थैंक यू सो मच. आपने ये सवाल मुझसे पूछा क्योंकि इस सवाल में मेरी इतनी अच्छी कहानी छुपी थी जो मुझे ही आज शायद पहचानने के लिए मदद हो गई. गुरंज भाई, एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जो है वो मेरे से पहले मेरे पेरेंट्स ने देखा था, और उन्होंने जैसे ही देखते उन्होंने कहा कि ये बिजनेस जो है दिस इज मेंट फॉर नील, ये नील कर सकता है. और लेकिन मेरा जो मोटिव था गुरंज भाई, वो मेरे लाइफ में सिर्फ दो ही चीज था, वो था बिल्कुल ही क्रिकेट और डांस. एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट. और मैं ये बिजनेस के प्रति बहुत हेजिटेट करता था, इतना कि दोस्तों की जैसे डैडी का फोन है ना कि चलो आज बिजनेस सेशन है, तो मैं हाँ करके रात को सीधा उनको घर पे मिलता था. इतना हेजिटेशन हुई करती थी, राइट. समहाउ मुझे बिजनेस का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता था, बट आई वाज सो मच एंगेज इनटू स्पोर्ट्स एंड पैशन अंटिल मेरी जिंदगी में एक इंसिडेंस हुआ और वहां से मेरे टेबल्स टर्न डाउन हुए. दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में आई वाज प्लेइंग प्रीटी गुड, और वहां पे खेल मुझे मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, काफी अवार्ड्स मिले. बट एक चीज मेरे साथ हुई कि मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में प्रमोट नहीं हुआ था, और वहां पर अंदर कुछ हुआ. वो जो हिट हुई मेरे पास कि मैंने अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू किया कि नील, प्लान ए तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बट व्हाट अबाउट प्लान बी? यू नो, जोश में काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश को संभालना बहुत जरूरी है. तो ये जब मुझे पता लगा, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग टू ऑल द बिजनेस सेशंस, और वहां से मेरी धीरे धीरे ये सवाल का आंसर मिलना शुरू हुआ कि नील, कहीं ना कहीं लाइफ में पैशन के साथ साथ लाइफ की सिक्योरिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, लाइफ के सेटलमेंट में ध्यान देना बहुत जरूरी है. एंड समहाउ मेरे दिमाग में एक सवाल गूंजना शुरू हो गया था दोस्तों, और वो सवाल बहुत सिंपल था कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है, 11 पोजीशंस है, और 11 पोजीशंस के लिए फाइट करने वाले कितने लोग हैं? 140 करोड़. मेरी प्रोबेबिलिटी कब लगेगी, मेरा चांस कब लगेगा, व्हेन वुड आई रीच देयर? और तब तक की डिपेंडेंसी मुझे मेरी लाइफ खा जाएगी. सो समहाउ आई हैड टू टेक अ डिसीजन कि प्लान ए तो चलने दो, लेकिन प्लान बी मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि शायद फ्यूचर में मुझे प्लान ए देखने की जरूरत ना पड़े. और तब मुझे हमेशा याद आता था, मुझे डैड हमेशा सिखाते थे कि नील, ये एक ऐसा बिजनेस है जो जोशीला तो है ही है, लेकिन होशीला भी है. आपको यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेगी जो आप आपके लाइफ में ढूंढ रहे हैं. और दोस्तों, मैंने ये चीज देखी बिजनेस में. जैसे जैसे मैं आते गया, मैंने उन लोगों से मुलाकात की जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में क्रिकेट फील्ड को खरीदा, जिन लोगों ने अपने अपने डांस फ्लोर्स को खरीदा. तो कहीं ना कहीं यही तो मैं चाहता था. मेरा सपना
आज भी मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर तक क्रिकेट खेलूं, मैं जिंदगी भर तक डांस करूं, क्योंकि वो मेरा पैशन है। बट आफ्टर डूइंग सो कि मेरा प्लान भी सिक्योर हो, और उसी वजह से मैं इस बिजनेस को बड़े ही पैशनेटली बिल्ड करता हूं। तो आज गुरंज भाई, अगर आप मुझसे पूछे या दोस्तों आप मुझसे पूछे कि व्हाई मी, तो मैं 2 ही चीज कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जोश के साथ होश, और प्लान ए के साथ एक सिक्योर्ड प्लान बी। राइट। सो दोस्तों, ये है मेरी कहानी। बैक टू गुरंज भाई। थैंक यू। ऑसम नील, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुंबई की आपकी एक टीम क्रिकेट की, और पंजाब में मुझे भी बहुत शौक था क्रिकेट का, हरविंदर भी इस पैनल में है, विल प्ले सम काइंड ऑफ अ क्रिकेट टूर्नामेंट, कहीं बीच में बना के ना एक स्टेडियम बुक करेंगे एंड विद डे एंड नाइट मैच लगाएंगे वहां पे। सो वी हैव लॉट ऑफ यंग पीपल आउट देयर इन मुंबई, पंजाब एंड एवरीवेयर इन इंडिया, जहां पे हम ये पक्का करेंगे। अब आपके वॉइस है ना, ये मेरा एक गोल बन गया है। तो ऐसे ही गोल बनते हैं, ऐसे ही ड्रीम्स बनते हैं, एंड दिस इज हाउ पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग एंड एमवे इज, कि आप इमेजिन करो और उसको अचीव करने में आप उसको एक्शन प्लान में डाल दो। सो दिस इज ऑल व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, और ये हर कोई कर सकता है। सो ग्रेट मेंशन अबाउट प्लान बी। प्लान बी, जो भी मर्जी करो जिंदगी में, चाहे आप स्टूडेंट हो लाइक संगीत इज ऑलरेडी pursuing his studies. There are people who are pursuing their corporate careers like Avinash. There are people who just got retired, मतलब स्टूडेंट के बाद उनको कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि while studying, हरविंदर जैसे ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके थे एंड द फुल टाइम दे आर बिल्डिंग एमवे बिजनेस। और मेरी भी स्टोरी ऐसे है, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे स्टोरी ऐसे है। सो मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव समवन हु इज कनेक्टेड इंटरनेशनली विद अस। वो सऊदी अरब से हमारे साथ कनेक्टेड है। व्हाट अ ब्यूटी। ये पहले तो कभी हो ही नहीं पाता था। मुझे लगता है कि कोविड ने हमारी कितनी आंखों को खोल दिया है कि पॉसिबिलिटीज ही unimaginable हो चुकी हैं। So we have Dr. Mamoona ji with us from Saudi Arab. Why are you and what motivates you, Dr. Mamoona ji? थैंक यू सो मच, गुड आंसर। मैं बाय मी बताने से पहले मैं आपको मेरे बैकग्राउंड से पहले कनेक्ट कर देती हूँ। एक्चुअली जो मेरी फैमिली में है, हम लोग मॉम डैड के अलावा हम 3 बहनें हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम द एल्डर वन। ओके, तो यू कैन सी दैट हम 3 बहनों के अलावा हमारी मम्मा पापा का कोई नहीं है, एंड वी आर बोर्न एंड बॉट अप इन सऊदी अरब। एंड फॉर माई मेरे पापा जो हैं वो लास्ट 45 इयर्स सऊदी अरब में एम्प्लॉय हैं, वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। एंड लाइक यहाँ पे हम लोग for our higher educations we have to shift to India last 6 years back, right? So there was a big gap between my father and 3 of us. We were connected just from voice calls या फिर video calls. हमने अपने पापा को 6 साल नहीं देखा है, right? 6 साल महसूस नहीं किया है, feel नहीं किया है. We were just connected with video calls and all that. So that was hitting me badly कि there is no one except my dad जो earning कर रहे हैं, जो backbone है हमारी family के, and हम 3 बेटियां हैं जिनको पापा को आगे देखना भी है ना, बहुत कुछ करना भी है। तो at this point, thanks to Amway, thanks to this opportunity, यहाँ पे मुझे मौका मिला। मैंने अपनी लाइफ में जब Amway बिजनेस मेरे लाइफ में आया था, मैंने कभी प्लान नहीं देखा था इस बिजनेस के अंदर। मुझे सिर्फ 2 चीजें हिट करी, एक तो ट्रैवल एंड सेकेंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब मैंने प्लान देखा तो आई गॉट अ पॉइंट कि नहीं, एक बेटी होने की हैसियत से, एक बेटी होने के हक से आई कैन स्टैंड बाय विद माय फादर, आई कैन बिल्ड समथिंग बिग फ्रॉम दिस, ताकि ये जो गैप आ रहा है हमारी फैमिली के बीच में ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस वो कम हो जाए। हम लोग मेरे जो मेंटर हैं वसीम सर, वो अपनी फैमिली के साथ मतलब इस बिजनेस को करते हैं। तो इवन दैट इंस्पायर्ड मी कि हाँ, फ्रॉम दिस Amway बिजनेस इवन आई कैन बिल्ड माय बिजनेस विद माय फैमिली एंड वी कैन लिव टुगेदर। सो दिस थिंग जो है, ये जो चीज है मुझे बहुत इंस्पायर करी। एंड सेकेंड थिंग, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा को, अपनी मॉम को एक स्ट्रेसलेस लाइफ दूं, एंड एट द एज ऑफ देयर ओल्ड फेस, जब वो बुढ़ापे की तरफ आ जाए, तब मेरे पास टाइम भी हो और मेरे पास मनी भी हो, ताकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच डॉक्टर ममूना जी। आई थिंक ऐसा तो ना कहीं कोई और इंडस्ट्री में सोचता भी नहीं है कि जो हम अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, और वो चीज हमारे गोल्स में भी है। एंड यू नो, इट इज वेरी क्लोज टू मी दिस स्टोरी ऑफ योर्स। When I joined this business, मेरा ये गोल था कि मैं अपने फादर को कब फ्री करूंगा, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज जस्ट 22 मैंने अचीव्ड 21% लेवल। तो मेरे फादर ने अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर ली,
अभी 2022 में रिटायर होना था उनको, तो वो 2013 में रिटायर हो गए थे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस. एंड मेरे लिए इस बिजनेस को करना इसीलिए पॉसिबल हुआ, एज अविनाश मेंशन्ड, द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. नो इन्वेस्टमेंट. हमारा जो शेयर होता है द प्रॉफिट मेकिंग में होता है. तो अगर इन्वेस्टमेंट होता, रिस्क होता, पैसा इन्वॉल्व होता, तो हमारे जैसे यंगस्टर तो कभी आ ही नहीं पाते. सो वेरी वेल, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड why and brilliant talk by Dr. Mimuna ji. So moving forward, we have very inspiring young women empowerment को लीड कर रही हैं, सबको लेके साथ. तो दीप्ति जी, you are here. Why you? What motivates you? Thank you, Gurans ji, again. Well, this is a very strong question for me. Why me? Well, if I have to talk about it, I would say that if I'm alive today, it's because of the Amway products. And here I carry the legacy of Amway business in me, because I am the second generation running this business. So बहुत ही प्यारी सी मेरी स्टोरी थी, बट धीरे धीरे करके वो चेंज हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर. सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू. This business knocked my door. I mean, actually, my parents started this business when I was in graduation. Graduation बच्चे क्या करते हैं, मजे करते हैं, right? हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, खूब मस्ती करते थे और पूरे हफ्ता पढ़ते थे. और क्या करते थे, वीकेंड में पार्टी करते थे. This was life. हम लोग क्या करते थे, we used to look forward for a party, कि किस तरह से हमारे स्ट्रेस को हम बस्ट करें. But at that time, my parents had started building this business. तो धीरे धीरे मैं अपने घर में देखती थी कि ये बहुत कुछ हो रहा है, कुछ बातें हो रही है, कुछ सपनों की बातें हो रही है. एंड देन थोड़ा सा मुझे सुनने में अच्छा लगता था, बट मैं दूर भागती थी. क्या थोड़ा सा ना सीरियस भी होना पड़ेगा उधर. तो होता ये था कि देयर यूज्ड टू बी टू माइंड्स, करें या ना करें. तो फिर माय डैड टोल्ड मी, ही सेड, Dipti, you have to do one thing. I said, what, Babuji? He said, see, you have to be in good association to build your character strong, so that तुम अपने ना प्रोफेशन में, अपने कॉलेज में एज अ स्टूडेंट, या तुम जो भी कर रहे हो वो आगे बढ़ो. उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तुम बिजनेस साइन अप करो, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करो और ज्यादा काम करो. I said, okay, fine, Babuji, what I am supposed to do? He said, you have to be in our business sessions. I said, oh my God, ये तो फिर उल्टा ही मेरे पे पड़ गया. I said, okay. So I am from Lucknow. यहाँ पे जो business sessions होते थे ना, that used to fall on Saturdays. Saturday है, party है, same time पे है, तो हम क्या करते थे? Then my Babuji used to tell me, ठीक है, you do your party. After party, come to the business session. अब party में जब हम हैं, तो हम बिल्कुल different है. And एक business session, formal session में वो सोच सकते हो कैसे करके हम manage करते थे. तो last के 15 minutes में आती थी. Proper dress code में I used to just run and I used to be there. And what used to happen, he used to be happy seeing me, and I used to be happy making him happy. That was in my mind. So that is what I used to do. I was like, okay, fine. But धीरे धीरे क्या हुआ ना, that changed me. Few months, I saw a change in myself, and I started avoiding the parties. There came a time when I understood, no, there I am building my future, I am building my life. So I told my friends, if you want me to be part of any party, any celebration, that has to be on Sundays, not Saturdays, because I am building my life. And you can also come and join me and be there and see for yourself. That is how, things changed for me, and I started to grow. But what happened? And at that time, my parents were building this business so passionately. They were in a very, very prestigious level. But God had different plans altogether. I lost my father. I lost my father in the meantime, and everything shattered. आप समझ सकते हो कि जब घर से छत चली जाती है तो क्या होता है. And the worst part was, हम लोग सिर्फ 3 females थे. उस समय हमारी दादी भी थी. We were just 4 females. I was the elder daughter, and my sister, mother, and mother's being a simple homemaker, and of course grandmother. So life just tossed, like anything. This is what happened to us, and I had no other option except to take the responsibility on my shoulders, because my sister was very, very young at that time, and I strengthened my grit. I said, "Nahi, Dipti, you have to build this opportunity. You have to carry Dad's legacy. You have to carry something." And this business so beautifully accepted me. And therein I started building it, rebuilding it along with my mother. My mother was in depression for good time, but I didn't stop there. I just started, and it got huge. And usme kya hua na? I got my first reward. The first reward was I gifted my family,
younger sister and my mother, the first ALS, that was Dubai, and it was her birthday month. And that birthday month, I celebrated her birthday, gave her the birthday cake and the birthday gift in Burj Khalifa. That is what this business is. Then there was no looking back. There was no looking back because we kept on growing from there. And as I said, I am alive because of the products, because since the childhood now, I've been a very, very sick child. And मैं एक छोटा सा example share करूंगी अपने last जो corona आया था, I was on steroids for a good 42 days. This is because of the products. When my mother had, decided, हमारा dosage उन्होंने double कर दिया था Nutrilite का. Therein I'm alive because of the products. And this is what Amway business is for me. It is running in my heart. Thank you so much. Back to Guranji. Awesome. I feel so powerful, with this association. मतलब अंदर जो एक वाइब्स आती है ना आप लोगों को सुन के, आई एम सो ग्रेटफुल दैट वी आर वन टीम, यूनाइटेड टीम, एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम. Especially thanks to our mentors Sumeet and Tania ji for bringing all of us together on a single platform. और मुझे लग रहा है कि पूरे नेशन को प्राउड फील हो रहा होगा with such stories, inspiring stories. So thank you so much दीप्ति जी, आपने heart to heart हमारे साथ ये बातें शेयर की हैं, and we all feel very powerful right now. So moving forward, अभी हमारे साथ जो एक young fast bowler cricketer पंजाब की है ना, so हरविंदर, why you are here man? क्या what motivates you? गुरहंस, तो जो मेरी वाई थी कि मैं लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करूं. तो उसके लिए मैं प्लेयर भी बना था, बहुत सारे ड्रीम थे. लेकिन जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका कब मिला, जब मैं गेम करता था तो मेरे एक इंजरी आ गई थी. तो उसकी वजह से मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया मुझे. तो गेम मेरी छूट चुकी थी और मैं डिस्टर्ब था लाइफ में. तो उसका कॉल आया, वो कहता भी हरविंदर मेरे पास एक काम है, अगर हम उसको करते हैं तो 50,000 इनकम मंथली बननी शुरू हो सकती है. तो मुझे वो चीज हिट की, क्योंकि मैंने अपने पापा को, मैं बहुत हार्ड वर्किंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमें लाइफ में यही सिखाया गया भी हार्ड वर्किंग करो और हार्ड वर्क से आप आगे बढ़ सकते हो. तो मैंने देखा भी मेरे पापा इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं और भी काम करते हैं, तो वो 50,000 अब इनकम बन रही है. तो मैंने उसे कहा ठीक है हम मिलते हैं, लेट्स मीट. वो आया मेरे पास, उसने मुझे बताया, तो मुझे फिर उसने यही बात की 50,000 बन सकता है. तो मैंने कहा ठीक है शुरू करते हैं. हमने शुरू किया काम को और बिजनेस को स्टडी करना शुरू किया. तो मैंने अपने खुद से प्लान करने सीखे. मेरी अपलाइन ने मेरा एक प्लान शो किया, क्योंकि जो भी मेरी टीम है आज, उसमें कोई भी बंदा मेरा नोन नहीं है, कोई भी रिलेटिव नहीं है. किसी को मैंने बस से पकड़ा है, किसी को रोड से हाई कर पकड़ा है. तो ऐसे ऐसे टीम बनी. तो उसमें बिल्ड हुए बहुत सारे चैलेंज हुए. चैलेंज एक पार्ट है लाइफ का, सभी को चैलेंज आते हैं. तो जो हमें ड्रीम्स दिखाए गए थे, हम अपनी अपलाइंस को देखते थे, वो जो उन्होंने ड्रीम्स लिए थे, अच्छे ब्रांड डाल रहे थे, अच्छी चीजों को ले रहे थे, अच्छे गैजेट्स थे उनके पास, तो वो हमने भी लेने शुरू किए. क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया तो हमारी अपलाइन ने बताया था कि अपने रूम में एक विजन बोर्ड लगा. तो वो विजन बोर्ड मैंने भी लगाया, उसमें जो सपने थे वो भी लगाए, तो उनको पूरे करते गए. और लास्ट ईयर जब कोविड था, तो तब मैं 15% था. तो मैंने मेहनत जारी रखी कोविड में. तो मैंने एक साल में सिल्वर गया, गोल्ड गया, प्लेटिनम गया, फाउंडर प्लेटिनम गया, और एक साल में जो मुझे अर्निंग हुई वो 21 लाख रुपया. तो उससे पहले मेरे पास एक बाइक थी, आज मेरी गाड़ी है. ठीक है, हमारे पंजाब में ट्रेंड है ब्रांड्स का, वो भी हम डाल रहे हैं. तो गैजेट्स अच्छे हैं हमारे पास. तो इन चीजों को, जब मैंने, हमारा घर था जो 1978 का बना हुआ था, तो जब मैं काम कर रहा था, मैं अपनी मम्मी पापा को कहता था जब हमारा नया घर बनेगा तो मैं इतनी इनकम आपको दूंगा. तो पिछले साल मैंने 14 लाख रुपया उनको दिया. अब हमारा घर बन रहा है. तो अब ड्रीम जो लिए थे वो पूरे हो रहे हैं, और कुछ ड्रीम जो रह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम आगे काम कर रहे हैं उसके लिए, वो भी हम टिक करते जाएंगे, टिक करेंगे. तो इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ गुरन साहब का, अपनी अपलाइंस का, और हमारे सभी के मेंटर सुमित एंड तानिया बहादुर, क्योंकि उन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया. तो मैं ये लास्ट में कहूंगा कि अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आप गट्स के साथ अपने ड्रीम्स को आगे रखकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए कोई नहीं रोक सकता. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. बैक टू ग्रांस. ये ना बहुत अरविंदर, बहुत एक मैं कहूंगा कि रैग टू रिचेस, मैं नहीं कहूंगा कि रिचेस, बट दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली जो एक नौकरी सोचता है, और हमारी एसोसिएशन ऐसी होती है कि कोई भी हमें सपना देने के लिए मतलब इंस्पायर नहीं करता. नो वन इन द फैमिली, नो वन इन अवर फ्रेंड्स
कभी भी हमारा कोई रिलेटिव आके नहीं हमें घर पे इंस्पायर करता कि आप सपने लो जी, बड़ा बड़ा कुछ सोचो। एवरीबडी, हर कोई मिलता है हमें लाइफ में, सिर्फ यही बोलता है कि पढ़ लो, अच्छी अच्छी नौकरी ढूंढ लो। एंड मुझे लगता है कि एमवे इज फर्स्ट थिंग, जो मेरी या आपकी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है कि इट्स द फर्स्ट एंड द ओनली अपॉर्चुनिटी जो पहले दिन आकर ही हमें मोटिवेट करता है टू टेक अ ड्रीम। एक सपना लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आपका 44 साल 44 इयर्स के बाद आप एक अपना खुद का घर बना रहे हैं, ये कभी पॉसिबल ना होता अगर आप अपने सपने को फॉलो ना करते। मे बी वो अगर हम अपना दाल रोटी चला रहे होते तो कभी ये चीजें पॉसिबल ना होती। सो आई थिंक इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ, ये सभी चीजें सबके लिए हुई हैं। इस बिजनेस में हमसे बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत कमाल किया है ओवर द इयर्स, एंड देयर आर मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज। एनीवन कैन गो विजन 100 कैंप पे सक्सेस प्रोफाइल उठाइए। ये तो अभी रिसेंट एग्जांपल्स दिखा रहे हैं आपको। इनके जो मेंटर्स हैं, कोचेस हैं ना, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है फ्रॉम 1998 टिल डेट। और मैं कहूंगा कि इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप सब उन लोगों को सुनिए, जानिए, पहचानिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। हमारा जो आज का पर्पस था विद ऑल दिस पैनलिस्ट कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना कमाल का बिजनेस है और ये कितना कमाल के तरीके से आज के टाइम में ये फिट बैठ रहा है और ये फ्यूचर जो है इसका कितना आगे जा रहा है। सो दिस इज आवर पर्पस, ऑल ये पैनलिस्ट का। डिजिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जूम तक नहीं सीमित है। हमारा बिजनेस को सीखने का माध्यम, किसी के साथ प्रोस्पेक्ट करने का माध्यम, उसको थोड़ा सा बेटर समझाने का और टेक्नोलॉजी को साथ में यूज करने का, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बातें हैं जो बहुत क्लियर मैसेजिंग सबने दिया है। आई थिंक आपकी वाई जो थी सब लोगों की बहुत इंस्पायरिंग थी। एंड विद ऑल दीज, आई थिंक विद योर वाई, आई डोंट वांट टू एंड दिस सेशन टुडे। मुझे इतना मजा आ रहा है, पता नहीं हम लोग सब लोग फिर दोबारा कब और कैसे इकट्ठे होंगे। बट विद माय पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन टुडे इज कि यू हैव सेट सम स्टैंडर्ड्स टुडे। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं जो बहुत दूर जाने वाले हैं। एंड आई एम पर्सनली प्राउड ऑफ टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू टुडे। एंड आई डोंट वांट टू एंड द सेशन, बट मैं जाता जाता एक चीज चाहूंगा जरूर, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, कोई इम्पैक्ट स्टेटमेंट जाते जाते आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। एंड एवरीवन मस्ट हैव लव्ड यू जब आप बात कर रहे थे, तो जाते जाते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर बात कीजिए। सो केशव, विद यू मैन। दोस्तों, अब समय आ गया है कि मेंटर से कनेक्ट होने का। ढूंढिए, बहुत सारे मेंटर्स बैठे हैं, लेकिन पहले आपको वो शिष्य बनना पड़ेगा। एक 22 साल की उम्र में जब मैंने बिजनेस को शुरुआत की थी दोस्तों, कौन सुनता उसको, लेकिन मैंने अपने मेंटर को सुना तो लोग भी मेरा सुनना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच गुरंश जी। Awesome, Keshav. Thank you. So we have Avinash. Yes. So my message to all of you is that you don't have to be good to start. You have to just start to be good, because a lot of people have this problem called a starting problem. And I would recommend that you don't look to be perfect. Just look for progress. Start day by day, little by little. Start taking the right decisions and you will go very far in this organization. Thank you. Awesome. Sangeet. Yeah. So according to me, it's all about the transfer of values. So personally, I believe that success is when a person is able to transfer the right set of values to the next generation. So that's the reason why my parents and my parents' team, my Diamond Uplines team, and me personally, I have been able to rebuild our business ferociously. And that opportunity of the transfer of the right set of values can only be found in certain places like this opportunity of Amway. Super. Absolutely. Friends, यही कहना चाहूंगी, it is not at all important where you're coming from, but what is important is where you're growing from here on. And to ensure that you grow in the right direction with the right speed, this is the best ecosystem that you can get into. So come and let's grow together. Wow. Vishruti. You know, there's a very famous Chinese proverb. If you're planning for a year, sow rice. If you're planning for a decade, plant trees. But if you're planning for a lifetime, then educate people. And if you are looking to do something different and grow not only your career, but grow personally too, then this is the best platform for it. Super. Neil. दोस्तों, एक कहावत है, a little progress each day adds up. रोज छोटा छोटा काम कुछ बड़ा करता है। आज दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, हमारे पास जिंदगी में 2 ऑप्शंस है,
पहला ऑप्शन 20 से 30 खूब मजे करें, लेकिन 30 से 60 खूब काम करें। 95% लोग जिंदगी में यही करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, दूसरा ऑप्शन चूज किया, जो मुझे भी पता है कि आप भी यही करेंगे, कि 20 से 30 हसल एंड काम, एंड 30 से 60 यू रॉक इट अप। थैंक यू। ग्रेट। डॉक्टर ममूना जी। दोस्तों ड्रीम्स को विशेष मत रहने दीजिए। ड्रीम्स आर समटाइम्स विशेस until you work on it and make it into a reality, है ना? Amway is the best platform to convert your dreams into reality, and specifically for girls and women. Thank you. Very true. Dipti ji. So I would like to say that, we should all strengthen our vision over our sight. Sight हमें थोड़ा सा दिखता है, but vision है ना, दूर दिखता है, जिसके लिए हम बहुत सारी प्लानिंग करके एक strengthened way में सबको ग्रो करते के संग में इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हैं. So I would like to say together we can for a very strong vision, and we will do it. Back to the host. Great. Harvinder. मैं ये कहूँगा भी किसी भी ना सुनो, प्ले विद गट्स, ग्राउंड इज ओपन फॉर ऑल। ते अगर आप गट्स के साथ खेलते हो तो आपके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए भगवान भी साथ देगा और आपको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। एंड व्हाट अ शो टुडे। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। कितनी बार बोलूं, लेकिन बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ। सो आवर पर्पस वाज टुडे टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, और मैं कहूंगा कि एमवे इटसेल्फ इज अ वे, वी आर ऑल द वे। मतलब हम सब एक रास्ता है, तुरते फिरते हम लोगों को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। Like what Sangeet mentioned, prospecting on the go. It just means he is giving a hope to live better life on the go. And what digitalization means, we can help anyone around the globe with our just a smartphone. तो इन चीजों को हमें बहुत आप सभी ने बहुत जबरदस्त पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ये जो आज इंटरेक्शन हुई है ना, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन, हमारा पर्पस ये था कि डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट लाइक माइंडेड लोग जब आते हैं, जो उनका इंटरेक्शन होता है, जो उनके व्यूज आते हैं, उनमें से हमें नहीं पता कि कौन क्या यहाँ से लेके जा रहा है। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन टू बी हियर। और मैं चाहूंगा कि जो आज की ऑडियंस है टुनाइट, जस्ट डोंट मतलब इस सेशन को खत्म करके जस्ट डोंट के बहुत बढ़िया लगा, जस्ट शेयर विद एवरीवन, शेयर द फीडबैक्स ऑफ द सेशन। आप अपने डाउनलाइंस के साथ और उन फीडबैक्स के साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, और वो जो थॉट्स है ना आपके जो इस सेशन के, वो जरूर एक्सचेंज करना अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम मैं बोलूंगा कि विजन 100 जो हमारा वेबसाइट है, इट इज गिविंग सो मच in building our characters, in building our life to achieve something we never dream of. तो ये कोई छोटी बात नहीं है जो सुमित एंड तानिया जी लेके आ रहे हैं हम सब के लिए। एंड आवर ओनली जॉब, एंड आई थिंक इट इज अ मस्ट जॉब फॉर एवरीवन to exchange our thoughts about this session, and give our feedbacks to all of our uplines and the mentors. So thank you so much guys for joining us tonight. I hope कि आपको आज मजा आया होगा। There was not a single instant कि जब मेरा यहाँ से मन इन लोगों को सुनते हुए भी इधर उधर हुआ हो। एंड मैं चाहता था कि इस सेशन को हम 1.5-2 घंटा 3 घंटे तक भी चलाते तो भी हम शायद स्क्रीन के आगे होते। Everyone spoke from their heart. And lastly, I'm so thankful and grateful to be associated with Sumit and Tania ji. And मुझे लगता है कि आने वाला जो सफर है towards A25 and A70 is getting stronger and stronger. And I think this is just a glimpse of the future. And we all wish you a very best of luck in 2022. और मैं चाहता हूं कि आपका एक strong foundation, आपका एक strong goals हो moving towards A25. That is the Amway's 25th anniversary. So wish you all the best. Thank you so much guys, and proud of to be here. और सबको बहुत जबरदस्त। Thank you. Good night.
సార్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సార్. వావ్, వాట్ అ వండర్ఫుల్ సెషన్ కదా. సో ఫస్ట్ ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న అందరి తరపు నుంచి గ్రేట్ థ్యాంక్స్ టు చంద్రశేఖర్ అండ్ కావ్య మేడం ఫర్ అగైన్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్ సెషన్. సో అందరి తరపు నుంచి మా థ్యాంక్స్ సార్ మీకు. అండ్ one more thing, congratulations to all of you, all the 15 members in this meeting, and video on చేసుకున్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా great congratulations to you. ఎందుకంటే మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఈ సెషన్ ని రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో కంగ్రాచులేట్ చేయడం వల్ల మేము ఆ రెస్పెక్ట్ ని మీకు ఇస్తున్నాము. సో గ్రేట్ కంగ్రాచులేషన్స్. సో అర్థమైంది కదా అండి, Amway బిజినెస్ అనేది రెడీగా ఉంది విత్ ఇట్స్ విజన్, స్ట్రెంగ్త్, సపోర్ట్, మన డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వరల్డ్ టూర్స్, వాట్ నాట్ అన్ని ఉన్నాయి. ఒక్క కాస్ట్ ని పట్టుకొని వస్తే మిగతా అన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. ఒక్క ప్రాబ్లం ఉందని బిజినెస్ లోకి వస్తే మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. బట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకొకటి నేను మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే, యూత్ గురించి ఈ సెషన్ నడిచింది. యూత్ కి ఏ విధంగా డిజిటలైజేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది, ఏ విధంగా బిజినెస్ రెడీ ఉంది, ఏ విధంగా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అన్న దానికి. బట్ ఏజ్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ నెంబర్. 18-40 దాటిపోయిందని చెప్పి బాధపడిన అవసరం లేదు. బికాస్ వీసీ కేఎఫ్సి ఫౌండర్ వచ్చేసి 65 years ఏజ్ లో. అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు వీ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ అ నెంబర్. ద ఓన్లీ థింగ్ మ్యాటర్స్ ఈస్ ద పర్పస్, ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ పర్పస్ అండ్ పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనం ట్రై చేయడమే మన లైఫ్ అనేది. So it's just like have that purpose, purpose ni find cheyandi. And one more thing, just pay gratitude to God, because ee business lo manam unnamante mana purpose already set ayipoyinatte. The only thing is to achieve that purpose. So with this great motivation, let's go Athens and wish you a great week ahead, since it's a Monday. So thank you for connecting. Let's meet you in the next sessions. Thank you. One minute, wait. సో గ్రేట్. ఒకసారి వండర్ఫుల్ హోస్టింగ్ చేసినటువంటి యంగ్ రైట్ క్రౌడ్ కి ఒకసారి మనము క్లాప్స్ ఇద్దాం అందరం కూడా. ఓపిక్ గా అందరూ కూడా వీడియో ఆన్ చేసుకుని ఈ రోజు ఈ సెషన్ అటెండ్ అయ్యారు. నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి మీ అందరికి కూడా. సో మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ అయిపోయింది రైట్. అండ్ సో గ్రేట్, కంగ్రాచులేషన్స్ ఎవ్రీవన్ అండ్ కీప్ గోయింగ్. బాయ్.